Apologies for the time that we have taken. Rajiv sir, thank you very much for your patience and everybody. So, namaskar and good afternoon to everybody. I am Vishakha Rajurkar Raj. I have with me Dr. Ruchi Mishra Tiwari and Mr. Amit Nema. All of us welcome you all for this unique one-day webinar titled Call for Paper Writing and Research Report on Innovation. So this interactive webinar is being organized by Institution Innovation Cell, IIC, RNTU, the Faculty of Commerce, the Faculty of Humanities and Liberal Arts, and the Faculty of Education, Rabindranath Tagore University. I'm glad to share with you all that we have two eminent speakers today with us in this webinar, Mr. Rajiv Agrawal, President of Association of All Industries Mandideep in Bhopal, and CMD of Ananya Package Private Limited. Alongside, we also have a young entrepreneur, Mr. Sumit Mahindra, founder and CEO of RTI Wala Bhopal. Warm welcome to you, Mr. Agrawal and Mr. Mahindra. We also have with us all the deans, HODs, IIC members, and also the faculty members, students, and other participants. A heartfelt welcome to all of you today. So the theme of today's webinar is quite unique and interesting. And before we get into the learning session, I would request Dr. Sangeeta Johari, Dean, Faculty of Humanities and Liberal Arts, IIC President, and also the coordinator of IQSC, RNTU, to kindly welcome our speakers and also introduce the topic of to the participants for better understanding of this session today. So over to you, Dr. Sangeeta Johari. Thank you, Vishakha. It's always been a pleasure to welcome the motivational speaker, or what to say, the path giver, or to give a drive to do something new always. I welcome Agrawal sir once again on this platform, and today he will be definitely sharing a different, you can say, a different perspective of innovation, a different perspective of entrepreneurship. So welcome you, sir, on behalf of Faculty of Commerce, Humanities and Liberal Arts and Education. We have all the HODs and deans in this group to welcome you, sir. With this also, I would like to extend a welcome from the Institution of Innovation Council, which is really being driven very good by our Vice President Dr. Deepak Motwani sir. Sir के आने से काफी जील उसमें आई है और काफी एक जो कहते हैं पकड़ उसमें आई है. तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, और साथ ही में हमारे साथ एक स्पीकर जुड़ेंगे अभी कुछ ही समय में, Mr. Sumit, and he's a very young and dynamic entrepreneur, I must say, having a lot of zeal to do something new and innovative. So he will be joining us soon. So presently, I am welcoming him. Once he will be there, I'll again extend a formal welcome to him. Now, as Vishakha has given me a task to introduce the context and the theme, जब हम इसका नाम देखते हैं तो थोड़ा सा confusion होता है, call for paper writing and report innovation. Now, this is really a tricky job to how to report innovation. I was having discussion with sir before this session, and I was having discussion with Sumit and with Deepak sir also, कि एक्चुअली इसमें बच्चा समझेगा क्या, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए टीचर्स हैं, PhD स्कॉलर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, यंग एंड एस्पायरेंट UG PG स्टूडेंट्स हैं. सो व्हाट दे विल गेट एक्चुअली आउट ऑफ दिस वर्कशॉप, देयर इज ऑलवेज एन आउटकम बेस्ड लर्निंग वी आर फोकसिंग ऑन. सो दिस special workshop will be dedicated to the concept that if you have something in your mind, हम हमेशा कहते हैं ideas are nobody's monopoly, and ideas आ सकते हैं, be creative, be innovative, and lot of jargons we give to our students and scholars. But the only thing they are facing a problem is how to report it, how to draft it, how to articulate it in a way that it should impress the you can say the investors, if you say, or the panel, you say, because nowadays, if you see, the government is coming up with a lot of options. You must have seen recently, Toycothon is there. Then I was also reading out something like Agrithon is there. So government is now giving you the opportunity that if you have something in your mind, put it down a piece of paper, or maybe share it with on a platform. And if it is really feasible and worth enough to invest, they are ready to support you. So एक जो बात हमेशा होती थी अग्रवाल सर के, हम जो बच्चे जनरली हिचकिचाते थे या जो लोग हिचकिचाते थे आगे बढ़ने से कि हमें क्या सपोर्ट मिलेगा, तो इस आत्मनिर्भर के आने से मुझे लगता है कि ये सपोर्ट तो सरकार अभी तो दिख रहा है कि देना चाहती है, दे रही है. सवाल ये है कि ये सपोर्ट हम ले कैसे. तो आज का जो हमारा वर्कशॉप है, ये इन दो एमिनेंट स्पीकर्स के माध्यम से जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, जिनके दिमाग में अगर कुछ भी नया चल रहा है, तो उस इनोवेशन को वो रिपोर्ट कैसे करें, उस इनोवेशन को वो ड्राफ्ट कैसे करें,
उसे लिखें कैसे। तो ये जो कंटेक्स्ट है कॉल फॉर पेपर का, मुझे लगता है यही बात है, क्योंकि जब हमसे प्रोजेक्ट प्रपोजल भी मांगा जाता है तो अगेन हम स्ट्रगल करते हैं कि हम अपने थॉट को एक प्रॉपर फ्रेम में कैसे लेकर जाएं और सामने वाला आपके प्रोजेक्ट को पढ़ के एक वाव फैक्टर कैसे देगा। So this is still a tedious task for the teachers, for the students, and for those who wants to do something of their own. So for this, we invited Sir to give us the insight on that, because he is having a lot of experience of field and industry, and definitely followed by Sir, the another eminent speaker who is recently doing a lot of research and development and is bringing out his venture in a big way, and he has recently faced a lot of platforms, and he really fascinates the investors for his ideas. So just I think that the outcome of this webinar will be definitely the a food for thought for all the aspirants, and definitely they'll be able to draft something good after this workshop. So with this, I would like to give a pause to my speech, and I request Vishaka to please proceed and to give us the opportunity to again have the good learnings from Agrawal sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Johari, for such an introductory insight on today's webinar. So now, without taking much time, let us begin with the session with the first speaker of the day. However, people with the big profiles do not need an introduction, but as the formalities instruct us, please allow me to introduce Mr. Rajiv Agrawal to all of you. Mr. Agrawal is not an unknown face and unknown name to all of us, especially to those who are into entrepreneurship. Mr. Agrawal is the president of Association of All India Industries Mandideep in Bhopal and chief managing director of Ananya Package Private Limited. He has studied mechanical engineering from National Institute of Technology, Kurukshetra. And going offbeat, impressively, he has also studied clinical psychology from Barkatullah University, Bhopal. He is a motivational speaker and has conducted many sessions and touched the life of many people. He is the member of regulatory body of almost all the universities and colleges of Bhopal, and he has been involved in establishing many new companies and startups. Mr. Agrawal is going to address all of us today on the subject description of the problem, where he will be discussing about the issues which need to be addressed while we are writing about innovation. The session will open for a question answer round in the end after Mr. Agrawal's speech. Now I request Agrawal sir to kindly start with his lecture. Over to you, sir. Thank you very much, Vishakha. Thank you very much. You have really done a good job of introducing me. मैंने सब लिख के दे दिया था, आपने उसे और भी अच्छा कर दिया. Next time I will do it this way. थैंक यू वेरी मच. ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये बड़ा अच्छा है, अपना लिख के दे दो बहुत सारा, तो कितना कम करेगा इंट्रोड्यूसर, कुछ करेगा तो भी बहुत कुछ बोल देगा. थैंक यू फॉर पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, डॉक्टर संगीता जौहरी. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द wonderful deans, HODs, and whoever doctors, so many of you are sitting here. So thank you very much for listening to a non-doctor. And this is going to be, as Vishakha initially said, इंटरएक्टिव होने वाला, इंटरवेक्टिव IIIC हो जाएगा, इंटरवेक्टिव इनोवेशन इंडस्ट्रियल कौन सी काउंसलिंग है आपकी. सो थैंक यू वेरी मच. तो मैं जल्दी से आपको 2-3 बातें बताता हूँ कि मेरे साथ एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ. इनोवेटिव कैसे होते हैं बच्चे और क्या करते हैं. आई वाज इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज. आई सेड, और ये सब मुझे, आई थिंक आई विल बी एबल टू सी द चैट बॉक्स. पार्टिसिपेंट चैट बॉक्स में लिख पाएंगे क्या विशाखा जी? Yes, sir. No, I don't think, but they will be able to write, I think. But I can see chat box. Yes, you can see, sir. You can see the chat box. And मैं PPT भी शेयर कर पाऊंगा ना? नहीं सर, आप शेयर कर सकते हैं, शेयर स्क्रीन अगर हाँ करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे. हाँ. तो हुआ ये कि साहब एक यूनिवर्सिटी में गए, वहां एक बच्चे से पूछ लिया, स्कूल में गए, कॉलेज में गए कि साहब बैरोमीटर से किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग को कैसे नापेंगे. तो भाई साहब ने बड़ा गजब जवाब दिया. कहता साहब बड़ा सिंपल काम है, एक रस्सी बांधेंगे बैरोमीटर के पीछे, बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाएंगे और वहां से उसको लटका देंगे. जब बैरोमीटर जमीन को टच कर जाएगा तो रस्सी नाप लेंगे, रस्सी की लंबाई और बैरोमीटर की लंबाई, बिल्डिंग की ऊंचाई पता लग जाएगी. अब मैं साइंस का स्टूडेंट और वो साइंस का स्टूडेंट, और मेरा दिमाग पकड़ के बैठा. क्या? मैंने कहा यार कोई सीधा जवाब नहीं है तेरे पास? कहता सर इनोवेटिव आइडियाज है मेरे पास, बहुत सारे ढंग से मैं बता सकता हूँ बैरोमीटर की से कैसे नापी जा सकती है बिल्डिंग की. आई गॉट इंटरेस्टेड. तब तक उस बच्चे पे मेरा इंटरेस्ट जाग गया था. मैंने भाई शुरू हो जा, और कौन से 5-7 ढंग है तेरे पास? कहता मेरे पास 5-7 ढंग है, उससे बता सकते हैं. सबसे आखिरी में साइंटिफिक बताऊंगा. मैंने बता दूसरा ढंग क्या? कहता बैरोमीटर को बिल्डिंग के बगल में धूप में खड़ा कर दो,
फिर उसकी शैडो की लंबाई नाप लो और बैरोमीटर की लंबाई से शैडो की पता लग जाएगी, फिर बिल्डिंग की शैडो नाप लो, फिर बिल्डिंग की पता लग जाएगी। मैंने कहा गजब, दिस इज वंडरफुल। और क्या ढंग हो सकता है इसका? कि तीसरा ढंग ये हो सकता है कि जी नाप लिया जाए, जो साइंस स्टूडेंट है दे विल अंडरस्टैंड, कि पेंडुलम बना के वहां लटका दिया जाए छत से और फिर जी नाप लिया जाए, उससे पता लग जाएगी। और क्या ढंग हो सकता है भाई बैरोमीटर से? कि सर बड़ा सिंपल ढंग है, बिल्डिंग के जो मेंटेनेंस इंचार्ज है उसके पास जाओ, उससे को भैया मेरे पास बड़ा खूबसूरत बैरोमीटर है, दिस आई कैन गिव यू इफ यू कैन टेल मी द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। I said this is fantastic, and finally I said now tell me the scientific way। बड़ा सिंपल है, कैसे pressure at the bottom of the building, ground floor, and pressure at the top of the building, pressure will drop, the drop will tell us the height। This is a scientific method, but going beyond scientific desired stereotype methods is what innovation is all about। So before I start the session I want to really kick up, और मैं थोड़ा spice up करना चाह रहा हूँ आपकी थोड़ी थिंकिंग स्किल्स को। तो लेट मी सी इफ आई कैन आई एम एबल टू डू इट। तो ये टीचर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और फैकल्टी और पार्टिसिपेंट दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। तो इफ यू सी हियर, ये एक बड़ा क्लासिकल डायलेमा है क्रिएटिव थिंकिंग का, बट आई वांट टू शो यू दैट इट इज ए नॉर्मल थिंग। आपको सबको ABCD 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा। विशाखा जी विल हैव टू हेल्प मी विद द चैट बॉक्स अगर कोई जवाब आते चलते हैं, राइट? तो ये एक वॉल खड़ी हुई है बीच में, A और B के वॉल खड़ी हुई है। यू ऑल कैन सी इट। विशाखा जी दिखाई दे रहा है बेहतरीन? Yes, yes, sir. थैंक यू। और ये गर्दन तक ABCD 4 लोग दबे हुए हैं। 2 के सिर पर काला हैट है, 2 के सिर पर व्हाइट हैट है। किसी एक को आवाज मारकर ये बताना है गारंटी से कि मेरे सिर पर कौन सा हैट है। सही जवाब दिया तो बच जाएंगे, नहीं तो आप मार दिए जाओगे। तो कौन बताएगा? मुंडी आप पीछे घुमा के नहीं देख सकते। A सिर्फ वॉल देख सकता है, B सिर्फ वॉल देख सकता है, C B को देख सकता है और D सिर्फ C और B को देख सकता है। अगर चैट बॉक्स में कोई जवाब आ रहे हो, गारंटी से किसको पता है कि उसके सिर पर कौन सा हैट है? देखो चैट बॉक्स। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो एंड टेल मी। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स तो मुझे सुनाई नहीं देंगे। एनीवन? कोई जवाब आए क्या अभी तक विशाखा जी? No, sir. We have one answer in question answer. Nima sir, can you please open the question answer? हाँ, डी आंसर आया है। आशुतोष कुमार झा ने भेजा है डी। आयुषी मैं पढ़ पा रहा हूँ। अब मैं पढ़ पा रहा हूँ। आस्था ने भी डी भेज दिया है। ओके ओके, आने दीजिए और देखते हैं और कौन से। ठीक है मैम। प्लीज ओपन द चैट बॉक्स। खोल दिया अभिषेक जी? सब खोल लिया है? डी 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 हो गए सर, सारे डी डी हो गए। तो अभिषेक जैन जी आ गए, विनीता राजन जी। आस्क टीचर दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। विनीता, थैंक यू वेरी मच। भास्कर विग, नो, आई वांट वन आंसर। दिस इज ओनली वन पर राइट आंसर, देयर इज नो C and D। A, Abhishek, how can he tell anyone? He doesn't know. अरे यार, just hold on. Sir, we are opening chat box in a minute. Oh, doesn't matter, आप खोल दोगे तो ठीक है, नहीं खोलते तो। स्क्रॉल कीजिए नीचे क्वेश्चन आंसर इस साइड से हो रहा है सर, साइड से। अभी तक कोई सही जवाब आया क्या? क्वेश्चन मेजॉरिटी ने D और B लिखा है। अभी तो आपका क्या जवाब है? सोचा नहीं। ऑलराइट, डी को कैसे पता होगा? डी को एक हैट काला दिख रहा है, एक सफेद दिख रहा है। डी को ये कैसे कंफर्म होगा उसके सिर पे कौन सा है? वो काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। हाउ कैन डी बी श्योर ऑफ हिज राइट? ये तो किसी को देख ही नहीं सकता, इसलिए वो डिसाइड ही नहीं कर सकता उसके सिर पर कौन सा है। सर इसको बंद कर दीजिए क्वेश्चन आंसर। वो लोग सब डी लिख रहे हैं, यही प्रॉब्लम है, रूटीन थिंकिंग हो रही है। रोशन, आई वांट योर लॉजिक। रोशन का लॉजिक क्या है? सी लिखा है, एक अलग आदमी ने एक अलग जवाब दिया है। टेक रिस्क, विनीता, टेकिंग रिस्क गुड आइडिया। देखो हटा दो वहां से। चलिए सुनिए, मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ा और पकाने वाला हूँ।
ए किसी को नहीं देख सकता, ए अपने सिर पे नहीं देख सकता, ए को नहीं पता कौन सा हेड है, ही कैन नॉट कॉल। बी सिर्फ बॉल देख सकता है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो डिसाइड ही नहीं कर सकता। उनको ये पता है 2 काले हैं 2 व्हाइट है, बट उसको नहीं पता कि वो कौन सा है। अब सी ये सोच रहा है कि डी बोलेगा, क्योंकि डी को दिखाई दे रहा है बी और सी को अपने सिर का हेड नहीं पता, लेकिन सी को ये दिखाई दे रहा है कि बी के सिर पर व्हाइट है। तो सी ये सोच रहा है कि डी क्यों नहीं बोल रहा है। तो उसके दिमाग की घंटी बजती है कि डी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसके सामने एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। अगर दोनों व्हाइट होते तो वो लपक के बोल देता ब्लैक, और दोनों ब्लैक होते तो वो बोल देता लपक के व्हाइट। लेकिन चूंकि उसके सामने एक ब्लैक है एक व्हाइट है, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके सिर पर कौन सा है। तो सी समझ जाता है कि बी के सिर पर व्हाइट है तो मेरे सिर पर ब्लैक है, एंड सी सेज यस आई नो आई हैव ए ब्लैक हेड। आई होप यू गॉट माय लॉजिक। डू आई रिपीट द लॉजिक? यू गॉट माय लॉजिक? डी को कंफर्म है, डी को कंफर्मेशन नहीं है कि उसके सिर पर कौन सा है। 2 ब्लैक है 2 व्हाइट है, सामने एक ब्लैक है एक व्हाइट है, इट कैन बी व्हाइट और ब्लैक, रिस्क है। सी को पता है कि डी क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि एक ब्लैक है एक व्हाइट है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है, और सामने मेरे व्हाइट है तो नेक्स्ट मेरा तो ब्लैक होगा, एंड सी स्पीक्स आउट। folks, why I'm trying to say this, in your daily routines, in the imperative जो बिल्कुल साधारण रूटीन है, उन रूटीन्स में कुछ अलग दिखाई देना, that is thinking creatively. And how does creatively take you to innovation? That is writing तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट वो तो आप ज्ञानी है समझ जाएंगे। जल्दी से एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, and then we can go ahead. And please write your answers in chat box और question answer में दिखाई दे रहा है। साहब 2 गाड़ियां चल रही हैं 100 किलोमीटर दूर है, एक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है राइट साइड वाली, लेफ्ट वाली 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। जब वो एग्जैक्टली 100 किलोमीटर अपार्ट है तो एक पक्षी 80 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है। नेचुरली वो 60 वाली से ज्यादा तेजी से उड़ रहा है, वो 40 वाली तक पहुंचता है तो इमीडिएटली वापिस हो जाता है, वापिस 60 किलोमीटर वाली रफ्तार की गाड़ी तक पहुंचता है तो वापिस उड़ जाता है, 40 वाली तक पहुंचता है वापिस मुड़ जाता है, जैसे 60 वाली तक पहुंचता है वापिस मुड़ जाता है। वो जब तक दोनों कारें एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाती कंटिन्यूअसली ये करता रहता है। मेरा सवाल ये है, जब दोनों कारें एक दूसरे के बगल में पहुंचेंगी तब तक वो पक्षी कितने किलोमीटर उड़ चुका होगा? क्वेश्चन आंसर सेशन को जिंदा कर दीजिए और मैं उसमें देखता रहूंगा जवाब। ओह माय गॉड, कितने किलोमीटर उड़ चुका होगा? अब लोग ग्राफ लेके बैठ गए हैं, कैलकुलेटर लेकर बैठ गए, ड्राइंग बना रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, चक्कर में आ गया कि काहे का सेशन चल रहा है, राइटिंग के लिए बुलाया था, यहाँ तो मजे लिए जा रहे हैं। बट फोक्स, दिस इज द वे आई डू। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन भास्कर, आई डू इट नाउ फॉर यू। भास्कर, देर हिंदी में बोल देता हूँ या अंग्रेजी में बोल देता हूँ। देयर आर 2 कार्स व्हिच आर 100 किलोमीटर अपार्ट, एज यू कैन सी इन द ड्राइंग। The right car is running towards the other car at a speed of 40 kilometers per hour. Left side car is running towards right at a speed of 40 kilometers per hour. Exactly when both are at 100 kilometer, a bird who flies at 80 kilometer per hour starts flying in direction of 40 kilometer वाली जो कार है, लेफ्ट हैंड वाली कार, वहां तक पहुंचता है तो इमीडिएटली वापिस हो जाता है। जैसे उस कार के सिर पर पहुंचता है वो 60 वाली तक आता है, 60 वाली तक पहुंचता है, वहां से वापस हो जाता है, 40 वाली तक आता है, जैसे ही 40 वाली तक पहुंचता है वापस मुड़ जाता है, और जहां 60 वाली मिलती है वहां से फिर वापस 40 वाली की तरफ मुड़ता है। ऐसे जिगजैग उड़ता जा रहा है, यहाँ 40 पे पहुंचा वापस मुड़ा, यहाँ 60 वाली मिल फिर वापस। जब तक दोनों कारें मिलेंगी तब तक वो कितने किलोमीटर उड़ चुका होगा? ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें सेशन की भी बात करनी है और आप लोगों को मुझे कुछ आइडियाज भी ड्रॉप करने हैं, तो जल्दी से बताता हूँ। ऑलराइट, बहुत लोग चक्कर में पड़ गए कि क्या सवाल है, कैसा सवाल है, क्या करेगा पक्षी, कैसे पता लगा कितने किलोमीटर है, कौन सी साइंस लगेगी? बड़ा सिंपल लॉजिक लगेगा सर, क्रिएटिव इनोवेशन का बड़ा सीधा फिट है। एक कार 40 किलोमीटर पर चल रही है, दूसरी 60 पर चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, 100 किलोमीटर है, तो मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि वो कितनी देर में की कारें एक जगह मिलेंगी एक दूसरे से। इतना जवाब सारे पार्टिसिपेंट दे दे। 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार है, 2 कारें, एक 60 से चल रही है, एक 40 से, तो कितनी देर में वो एक दूसरे से मिल जाएंगी? 1 hour. Somebody is saying 1 hour.
सभी ठीक कह रहे हैं, 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। It is थैंक यू वेरी मच। सभी को पता है कि 1 घंटे में दोनों कारें एक बराबर होंगी, और जो पक्षी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर उड़ेगा? 80 किलोमीटर। आई मीन सो सिंपल। 1 घंटे में दोनों कारें बराबर होंगी और तब तक वो 80 किलोमीटर से उड़ने वाला पक्षी 80 किलोमीटर उड़ जाएगा। सो सिंपल। आई मीन सो सिंपल ए प्रॉब्लम। 1 घंटे बाद दोनों कारें साथ होंगी, तब तक 80 किलोमीटर से उड़ने वाला 80 किलोमीटर ही तो उड़ेगा, पर आवर उड़ने वाला 1 घंटा ही तो उड़ना है उसे, उसकी स्पीड 80 है तो 80 किलोमीटर उड़ेगा। Cannot fly more than that. Why have made you do this? See, in business, in life, before you start writing about your innovative ideas, before you start pitching your ideas, before you earn money out of it, before you make money out of, before you get name and fame for it, you have to think them clearly. तो मैं वही सवाल यहाँ पर कर रहा हूँ कि क्या क्लियरली सोचना है हमें, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग क्या है, देन प्रोबेबली वी कैन गो अहेड विद द सेशन, रेस्ट विल बी इजी। एंड व्हाई क्रिएटिविटी? दुनिया बदल रही है दोस्तों, अगर आप ये क्रिएटिव थिंकिंग थी। In day-to-day problem, you need to be creative. You have to think differently. And ये creative thinking का idea कि कैसे सोचना है, organizations को, universities को, teachers को, students को, innovation कर रहे हैं, इनोथॉन कर रहे हैं, जॉन से थॉन कर रहे हैं आप, उन सब के लिए कुछ अलग किस्म से सोचना पड़ेगा। वही बात अलग ढंग से करने का कोशिश क्या है, उसका नाम है innovation. It is looking at the same thing as everyone else and thinking something different. सबने वही प्रॉब्लम्स देखी, 2 बारी मैंने दिखाया आपको, लेकिन वो अलग से सोच के उसका नतीजा निकालना था, वो नहीं निकल रहा था। दैट इज क्रिएटिविटी। अगर ये क्रिएटिविटी है तो इनोवेशन। क्रिएटिविटी इज क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग, न्यू पैटर्न्स, समथिंग डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ नॉर्मल, समथिंग आउट ऑफ रूटीन। क्रिएटिविटी इज ऑपोजिट ऑफ रूटीन। इट्स नॉट रूटीन। इफ यू गिव रूटीन आंसर्स, यू आर नॉट बीइंग क्रिएटिव। मैं आपको चल के बताऊंगा आप सब कैसे क्रिएटिव बन सकते हो। मैं यहाँ बैठे हुए पार्टिसिपेंट से पूछा कितने पार्टिसिपेंट हैं, इंक्लूडिंग ऑल द फैकल्टीज एंड डीन्स एंड एचओडीज, कितने लोग हैं जो रोज एक ही रास्ते से आते जाते हैं? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। कितने लोग हैं जो लेफ्ट हैंड पे या किसी एक ही जगह रिस्ट वॉच पहनते हैं, किसी एक नाई से बाल कटवाते हैं, किसी हलवाई से मिठाई खरीदते हैं? वी आर बिकम अ क्रीचर ऑफ रूटीन एंड वी हैव स्टॉप्ड बीइंग क्रिएटिव। क्रिएटिविटी कॉजेज अनर्जीनेस समटाइम। जो लोग सब लेफ्ट हैंड पे वॉच बांधते हैं, जहाँ राइट पे बांध के देखिए थोड़ा सा अलग लगेगा। रोज उसी रास्ते से जाते हैं, किसी नए रास्ते से जाइए ना, आज थोड़ा बदल के जाइए, दुनिया भी अलग दिखेगी, दिमाग भी चलेगा। कभी माउस को उल्टा पकड़ के चलाइए, अगर माउस से काम करते हैं तो देखिए कैसे कितनी मुश्किल आती है कर्सर को सही जगह पहुंचाने में। इट्स अपोजिट ऑफ रूटीन। And what is the difference between creativity and innovation? Creativity is all about ideas. And innovation is ideas putting in action. Now, if you see from a business point of view, आपका वो कान में वो चूहा लगाने को उसे क्या बोलते हैं विशाखा जी? ब्लूटूथ। Now, idea was कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए, someone need to mute themselves. There is a lot of noise. I think Vishaka, you have to mute. Yes, now it is okay, sir. Perfect. Mute. Thank you. कोई आइडिया ये था कि यार कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि जिसमें तार ना हो और कभी निकाल के रख दे और कभी लिखा। दिस वाज आइडिया, दिस वाज क्रिएटिविटी, दिस वाज ए क्रिएटिव आइडिया। बट इनोवेशन क्या थी? वो ब्लूटूथ जो कान में लग गया। So, what is innovation? A creative idea put into practical action or application, that is innovation. Creative idea is not innovation. I repeat, लोग मेरे पास बहुत सारे लोग आइडियाज लेकर आते हैं, मैं कहता हूँ इसको यार एक्शनेबल बनाओगे तब ये इनोवेशन बनेगी। अभी ये सिर्फ आइडिया है। आइडिया कौन सा? सर लोगों की लाइफ इजी हो जाए, परफेक्ट, बट कैसे?
वो बताओगे उस दिन समझ आएगा। सर लोगों के रेलवे क्रॉसिंग पे वेट ना करनी पड़े, आइडिया उनको पहले से ही पता लग जाए, आइडिया, बट कैसे? व्हेन यू डू दैट, दैट बिकम्स इनोवेशन। सो creativity is thinking new things. It's a novelty, thinking something different, something new, something novelty. See, as human beings, we are looking for novelty in our life, in all the things that we do. At least I do, and you must be. वो ही ढंग, वो पता है हम लोग हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम इतने रूटीन में रहते हैं। All things in our life, including our work, our relationships, our families, our jobs, the places we go, they fall into routine. Try something new. That is novelty. That is creativity. But that novelty, when has some value, when they have a potential use to consumer or the company, when all the research that is being done is of practical use and can be added, value can be added to it, then they become innovation. Please look at this equation, both the equations that I have given you. The equation before this, creativity is idea, but innovation is ideas plus action. And second is creativity is all about novelty, and innovation is novelty plus value. अब यहाँ पे बैठे लोगों को दिक्कत ये होगी कि साहब इनोवेशन इज नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट डूइंग। आइडिया इज अबाउट, क्रिएटिविटी इज अबाउट टॉकिंग, मे बी मैं आऊंगा उसके ऊपर कैसे करना है, डूइंग, टॉकिंग टू राइटिंग एंड डूइंग पर कैसे जाना है, दैट इज व्हाट दिस सेशन। तो हम क्यों नहीं करते? हमारे पास टाइम नहीं है क्रिएटिव होने के लिए। मैं कहता हूँ है ना, टॉयलेट की सीट पे सबसे ज्यादा आइडिया आते हैं बैठे बैठे, पेपर पेन वहां रख लीजिए। सबको पता है ऐसा होता है, रात को सोते सोते आते हैं। पेपर पेन शुड बी ऑन योर साइड टेबल वेयर यू कैन नोट इट डाउन, जॉट इट डाउन, बिकॉज आइडिया विल बी लॉस्ट, सुबह याद नहीं आएगा। और नहा धो के तैयार होके यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे तो आइडिया विल बी लॉस्ट। आई सजेस्ट हैव ए पेपर पेन रेडी एट ऑल द टाइम, कैप्चर ऑल द आइडियाज दैट टू कम टू योर माइंड, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ, तो हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है। वो एक छोटी सी बच्ची मछली को ना हमेशा काट के बनाती थी, तो उसको कभी समझ नहीं आया ऐसे काट के क्यों बना। माँ दादी से पूछा क्यों, माँ से पूछा क्यों काट के बनाती है, क्या दादी से पूछ, दादी से पूछा पैन में क्यों अपन उसको 3 हिस्सों में रखते हैं फिश को काट के, क्या मेरी भी माँ से पूछ रहे, बस वो जाने वाली है, थोड़े दिन की मेहमान है, उसके पास पूछी क्यों कर हम इसको बार बार 3 हिस्सों में रखते हैं। कहती बेटा पता नहीं क्यों रखते हैं, मैं तो इसलिए रखती थी कि वो पैन छोटा था, मछली बड़ी आती थी, पैन में समाती नहीं थी, तो मैं काट के रखती थी। लेकिन मेरी बेटी ने भी सीख लिया, उसके बाद तेरी माँ ने भी ऐसे, और तू भी यही कर रही है, ऐसे ही चलता है। व्हाई चेंज? क्वेश्चन इज व्हाई नॉट? दोज हु आस्क व्हाई नॉट चेंज, जरूरत नहीं हमें पड़ती। आपके जो जॉब है उसमें रूटीन में अगर आप करते रहेंगे तो विल नेवर नीड टू बी क्रिएटिव, इट इज ऑन योर हैबिट। वी आर क्रीचर ऑफ रूटीन एंड वी हैव नॉट बीन टॉट टू बी क्रिएटिव। क्यों नहीं किए गए वो मैं आपको बताता हूँ, बैरियर्स क्या, जल्दी से बता देता हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप सब क्रिएटिव, anyone on this earth can be creative, provided he starts saying कि why do is this manner only, assumptions, as, you and me। assume के 3 हिस्से हैं। if you write the spelling of assume, ASS, as, you and me, now this is assume। assumptions have to be killed। एक्सपेंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। एक ही ढंग से करते जा रहे हैं काम को, रोज उसी ढंग से करते रहेंगे तो नतीजा भी वही आएगा। थोड़ा अलग ढंग से करने की कोशिश कीजिए तो चीजें बदलनी शुरू होंगी। प्रैक्टिकल थिंकिंग कीजिए, कुछ नए ढंग से कीजिए, और थोड़ा सा ये सोचिए कि किस वक्त आपके दिमाग में, खोपड़ी में सबसे ज्यादा आइडिया आते हैं, उस वक्त बिल्कुल तैयार रहिए कि अभी आइडियाज टपकेंगे एंड आई विल कीप ऑन कैप्चरिंग दैट। तो जल्दी जल्दी बताता हूँ 5 चीजें। पहले आइडिया आपके दिमाग में आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी जो आपको बॉदर कर रही होगी, वो जॉब पे हो सकती है, टीचिंग में हो सकती है, पैसे को लेके हो सकती है, हेल्थ को लेके हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, पैसे किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन स्टेज, बिकॉज दैट कीप्स ऑन बॉदरिंग यू। सो बार बार अगर आपका दिमाग किसी भी समस्या में अटक रहा है, बार बार उसकी तरफ जा रहा है और अलग अलग ढंग से आप उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन स्टेज। You prepare yourself for finding a solution. Second is वो दिमाग के अंदर लगातार बजती रहे और ये समझ आए कुछ हो नहीं रहा है बट कुछ हो रहा है साला दिमाग में। Now idea is getting incubated। आप सबके साथ हुआ होगा, अंदर ही अंदर वो दिमाग में घूमती रहती है, बज करते रहते हैं, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। Now that is incubation stage। The third stage is लगता है कि यार कुछ होने वाला है, साला अपन कुछ कर, इसको कर ले, मैं अब कर दूंगी यार, आ रहा है आइडिया दिमाग में आ रहा। Now you are prepared, ready, ripe for the
स्टेज नंबर 4 दैट इज इल्यूमिनेशन, जहां आपके पास लपक के आइडियाज आने शुरू होंगे. सडनली यू विल गेट क्रिएटिव, यू विल बी टॉकिंग टू पीपल. आप उनसे कहोगे सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर लें, ये कर लें. That is called illumination stage, and then you will get into verification stage. There, जब 3-4 आइडियाज अगर आ गए हैं तो एक आइडिया को आप वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एप्लीकेबिलिटी उसकी कितनी है वो चेक करेंगे, एंड इफ इट गेट्स एलोबरेटेड एंड calibrated, then you apply it. So basically there are 5 stages that you need to go through before an idea can be incubated. तो पहली स्टेज में, I repeat, पहली आपको कोई प्रॉब्लम बॉदर कर रही है, दूसरा दिमाग में बहुत सारे आइडियाज बज कर रहे हैं, तीसरा लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं, अभी होने वाला है, चौथा है 3-4 आइडियाज अब आपके दिमाग में आ गए हैं, और पांचवा है आप उनको वैलिडेट और कैलिब्रेट करके अप्लाई करना शुरू करते हैं. ग्राम वाला सेज कि दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ बीइंग इनोवेटिव. सो अब क्यों नहीं होते हम क्रिएटिव? यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में चलता रहता है, हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है. आप किसी के पास जाओ, क्रिएटिविटी कैसे खत्म हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे खत्म होती है. बॉस के पास लगे, सर आई हैव आइडिया. क्या? अरे यार सुन, अब आइडिया तेरे बहुत देखे, तू जाने दे. आई मीन द आइडिया हैज बीन किल्ड. आइडिया हैज बीन किल्ड. या छोड़ना यार, चल रहा है कुछ, ये नए तू फितूर लेके आ जाता है, खत्म. ड्रैग योर फीट. दूसरा, आप कहते हो यार मैं इसको अलग ढंग से करूंगी या करूंगा, लेकिन करते नहीं हो. तीसरा, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, लोगों को गोल सेटिंग करवा के आता हूँ, इनोवेशन स्टडीज करा के आता हूँ, HEG जैसे कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन क्लासेस लिए. इनोवेशन कैन बी टॉट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इट. सो I was working with senior managers. I will give them the idea. They will say we will do it on it. And मैं 3 महीने बाद दोबारा ट्रेनिंग के लिए गया तो क्या हुआ कि सर उसी का एनालिसिस कर रहे हैं. You stop doing it. If you keep on analyzing, that becomes paralysis of analysis. मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके पास 30-40% इंफॉर्मेशन है, 50% है, चलना शुरू कर दो. On the way you will get more information. It's like driving in a fog. फॉग में क्या करते हैं, जितना दिखता है उतना गाड़ी चला देते हैं, आगे को और दिखने लगता है और चलना शुरू करते हैं. दैट इज हाउ यू बिकम इनोवेटिव, क्रिएटिव, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड बिजनेसेस. क्रिटिसिज्म, बच्चों को घरों में, मम्मी एक आइडिया है, यहाँ ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में सर एक आइडिया है, उसने कहा छोड़ना यार तेरे आइडिया हमें पता चला. यू हैव क्रिटिसाइज्ड द पर्सन, यू किल्ड द आइडिया, एंड यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ. यू डोंट बिलीव, छोड़ना साले, तू फालतू दिमाग दौड़ाती रहती है, होना जाना कुछ है नहीं. Now you have just killed your own creativity. Cost estimates, आइडियाज पे सामने वाला कहता है यार इसमें इतने पैसे लगेंगे तेरे आइडिया में, विशाखा क्या आइडिया लेके आ जाती है, खत्म. क्रिएटिविटी इज गॉन. चौथा, इनोवेशन फनल्स नहीं है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर किसी कोई इनोवेशन मैनेजर नहीं है, कोई इनोवेशन HOD नहीं है. हैव ए डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन विथ 3 people only और 2 people एंड HOD जो आपके हर आइडिया को सुनने को तैयार हो. क्योंकि अगर आप चैनल से जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाएगा, प्रोफेसर डीन पे, और फिर वो HOD पे, और फिर वो VC तक बात पहुंचते डेफिनेटली आइडिया खत्म हो जाएगा, प्रोटोकॉल में उड़ जाएगा. तो आई सजेस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस टू हैव अ इनोवेशन बोर्ड और इनोवेशन काउंसिल और इनोवेशन मैनेजर, इनोवेशन HOD, समथिंग काइंड ऑफ थिंग. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, हास किसी आइडिया, मैं कह चुका है सारी बातें. इंटरनल कमिशन, रिस्क नहीं लेते अपन, नौकरी ठीक ठाक चल रही है, काहे को अपन उंगली करे, अपन तनख्वाह लेके घर जाओ यार, क्या कर रहे हैं, अपना चलती रहेगी यूनिवर्सिटी तो. और या फिर आपके पास इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि आप कर ही नहीं पा रहे इनोवेटिव होने का, आपको टाइम नहीं मिल रहा है. तो टाइम इज अनदर की दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इनोवेशन. मैं जल्दी आ जाता तो इसको छोड़ दीजिए, आप सबको पता है स्टेटस को. ये भी ने कहा था, confront assumption. Look at the point number 2. Confront assumption as you and me. हम गधे बन जाते हैं जब एक ही तरह से हम सोचते रहते हैं, दोनों ही. तो let us not assume, let us not become us, let us exhibit some kind of curiosity. बच्चे जैसी curiosity से इनोवेशन निकलती है. क्यों होता है? The more questions, I mean questioning is the key to the innovation. तो थोड़ा इमेजिनेटिव बनिए, थोड़ा सोचिए, नई नई चीजों को सोचिए, फोरसी द प्रॉब्लम्स, फोरसी द सॉल्यूशंस. मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं क्योंकि 12:40 हो गए हैं. लाइफ में रिस्क लीजिए साहब. द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक ए रिस्क. हेलो, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टू टेक ए रिस्क.
गलतियां होंगी रिस्क लेंगे तो। जो राइट हैंड से फुटबॉल, राइट फुट से फुटबॉल खेलते हैं उनको लेफ्ट से खेलिए, जो राइट से लिखते हैं कभी लेफ्ट हैंड से लिख के देखिए, बड़ी दिक्कतें होती है, बड़ी गलतियां होती हैं, गंदी मंदी हैंड राइटिंग आती है, लोग हंसेंगे भी, बट देन इफ यू कीप ऑन परस्यूइंग इट, सूनर और लेटर यू विल डू बेटर। कभी कभी ये भी देखिए कि यार डिस्कनेक्टेड आइडियाज क्या है, उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू कनेक्ट डॉट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्रिटिसाइज की चिंता मत कीजिए, बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है। कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, नॉन क्रिएटिव पीपल, नेगेटिव पीपल, वो कहेंगे छोड़ना यार, कहाँ लगी है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहाँ लगा बे, खोपड़ी खराब कर रहा है, and they kill the beautiful ideas that are germinating inside you to become something beautiful. They'll kill those beautiful dreams that you inside of you. You need to stay away from those energy vampires, negative people. So they will kill your creativity. Now let me get to the topic for what I have come. So how to write a creative idea? I am telling you this is from a disclaimer. आप सब लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी गुनी हैं, मेरे से जो गलतियां इतनी सब बात में हो गई वो माफ कीजिए, और आगे जो उनके लिए एडवांस में मांग लेता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। I have heard maybe thousands of ideas. I've sit as judge on several startup, plana, dikana, idea thons, और लोग मेरे पास आते ही रहते हैं, रोज दूसरे तीसरे दिन कोई आइडिया लेके आ जाता है। तो कहाँ कमियां रहती हैं और मुझे क्या चाहिए वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। Specific is terrific. Hello. I repeat, specific is terrific. So whatever you write, it should be very specific. Don't write in vague terms. I'm trying to solve the traffic problem. This is too vague. I'm trying to do something for the health. Too vague. Be specific. I'm trying to do something about the weight loss, or maybe I'm trying to do something about the intellect. Maybe I'm trying to do something about the body mass index. Be more specific. So what you need to do, how do you achieve specificity? When you flash your idea, flash your idea to your close ones. तो क्या होगा, उनमें से मेरे जैसे होंगे, विशाखा जी से, संगीता दीप्ति से, दीपक जी के पास आप जाएंगे, सर एक आइडिया मैं हेल्थ सेक्टर में कुछ करना चाहता हूँ, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ये बता करना क्या चाहता है? सर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे भाई उसका एंड पर्पस क्या है, क्या होगा, ब्रेकफास्ट की 10 दुकानें खुली हुई है। सो when you flash your ideas to some people, they will certainly ask you questions which will reach you to the specific idea that you want to elaborate. तो जनरल टॉपिक इज नॉट एफिक। तो क्या होगा, द मोमेंट यू कीप ऑन आस्किंग, एक बड़े फनल से यू विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टू द स्पेसिफिक आइडिया दैट यू नो, सो इट विल कीप ऑन नैरोइंग डाउन। और क्या करने की जरूरत है, एक बात हमेशा सोचिए कि आइडिया क्यों सोचा, ये आइडिया कहां से दिमाग में आया, तो वो इंसिडेंट अपने पास कैप्चर्ड रखिएगा, क्योंकि वो आपका स्प्रिंग बोर्ड था। और फिर आप उस आइडिया को फर्दर डीपली डिग करते रहेंगे तो यू विल फाइंड मोर आंसर्स टू इट। थोड़े से अपने आप क्वेश्चन पूछिए, वंस योर आइडिया, इज दिस आइडिया गोइंग टू वर्क, वाज दिस आइडिया इन एग्जिस्टेंस अर्लियर, व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, हाउ हैज दैट प्रॉब्लम बीन अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम। कुछ लोग आइडियाज ना बड़े छोटे छोटे आइडियाज लाते हैं, प्लीज ट्राई अगेन। मैं 2-3 आपको बातें बताया जाता हूँ, आइडिया स्पेसिफिक भी हो, आइडिया ब्रॉड भी हो। मेरे पास एक बच्चा आइडिया लेके आया जो कि कहता साहब ये आइडिया काम बहुत अच्छा करेगा नवरात्रों में। तो मैंने कहा ये 18 दिन का आइडिया है भाई, बाकी 365 दिन होते हैं साल में, बाकी दिन क्या होगा। तो यू नीड टू फाइंड आउट वेदर आइडिया कैन बी प्रोलोकेटेड, और इसके बारे में क्या क्या हुआ है अभी तक, किसी ने काम किया है कि डू सम रिसर्च। सो बी स्पेसिफिक, आई रिपीट, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। सेकंड, बिफोर यू राइट, हैव यू रिसर्च्ड इट? मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, सब रिसर्च स्कॉलर यहाँ बैठे हुए, मैं इस बात पे कह के अपने आप को शर्मिंदा करूंगा, कुछ भी कहूंगा तो बड़े बड़े तोपे बैठे हुए हैं। दूसरा, हमें अपने सारे आइडिया नए लगते हैं, बट क्या सारे वो नए एंगल, देखिए मैं आपको 2-4 बताता हूँ, वो आइडिया जो किसी की लाइफ बेटर ना करे, किसी को आसानी से काम करने में हेल्प ना करे, किसी को कम पैसे में काम करने में हेल्प ना करे, वो उसकी लाइफ की सिक्योरिटी ना बढ़ाए या उसको स्टेटस ना बढ़ाए, अगर इन 6-8 पैरामीटर में से आपका आइडिया किसी चीज को पूरा नहीं करता, तो आपके आइडिया को आप डब्बे के ढक्कन में डाल के ताला लगा के
बड़े तालाब में पत्थर के साथ डुबा दीजिए। इट्स नॉट ए वर्केबल आइडियाज। आइडिया शुड, आई रिपीट, 6-7 पैरामीटर हैं। क्या आपका आइडिया किसी की लाइफ इजी कर रहा है? क्या किसी को कम टाइम में काम करने में मदद कर रहा है? क्या किसी को कम पैसे में काम करने में मदद कर रहा है? किसी को कम एफर्ट में काम करने में मदद कर रहा है? क्या उनकी लाइफ को सिक्योर कर रहा है? क्या उनकी लाइफ को बेटर कर रहा है? क्या उनके स्टेटस को बढ़ा रहा है? ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, ये सर्विस स्पेसिफिक हो सकता है, ये पर्सन स्पेसिफिक हो सकता है, बट इन पैरामीटर्स में से अगर आपका आइडिया किसी पे कामयाब नहीं है तो वो आइडिया आपके दिमाग का फितूर है। आप 2 लोग लगे रहिए और उसको कूड़े के ढेर में डाल दीजिए। तो बिकॉज दिस आइडिया विल नॉट मेक न्यूज, इट मे और मे नॉट मेक दिस, बट पीपल विल नॉट केयर। मुझे उस आइडिया की परवाह नहीं है, मैं उसी आइडिया में इंटरेस्टेड हूँ जो मेरी जिंदगी आसान करता है, जो मुझे कम पैसे बचा देता है, जो मेरे को घर बैठे बैठे काम करने में हेल्प होती है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये क्यों चल गए हैं इतने सारे Flipkarts or your, because they have ideas which someone has put in and they have shown to the investors that we are going to make people's life easy. They can sit at home, get the things sitting at their home. They don't have to worry about the traffic. They don't have to worry about the car parking, and they can return it easily. The payments will be secure. What idea? I mean, great. हो गया काम। तो जिन लोगों के लिए बन रहा है, क्या उन पे लागू होता है कि नहीं, ये सवाल वो है जिनके बारे में आप जवाब लिखिए, स्पेसिफिकली लिखिए। जब ये रिसर्च करके सारे जवाब मिलेंगे तब बने। तो देन फाइनली इट शुड बी क्लीन, ससिंक्ट, इट शुड बी फोकस्ड। जैसा कि मैंने कहा वो पहली स्लाइड से, स्पेसिफिक वर्सेस टेरिफिक। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स बिफोर यू राइट। वेग राइटिंग डजंट मैटर, किसी के पास टाइम नहीं है सब बड़े बड़ी बातें लिखने का। हिट इट हार्ड। मैं आप सबसे एक आइडिया देके जाता हूँ। मैं अगली बार आपको किसी बॉस को, वीसी को, किसी को आइडिया प्रेजेंट करना हो, दीपक मोटवानी जी को करना हो, किसी को भी दुनिया में करना हो, आप पहले सर मेरे पास एक आइडिया है 25-50, कई लोगों ने कहा बहुत ही जोरदार आइडिया है। नाउ दिस गोज टू टेल 2 थिंग्स। अब वो बैठ के सोच रहे हैं यार ये ऐसा कैसा आइडिया लिया जो बड़े लोगों को बड़ा पसंद आया है। तो 2 पर्पस सॉल्व हो गए। एक तो ये आपने प्रूव कर दिया कि आपने यू हैव फ्लैश्ड इट थ्रू योर फ्रेंड्स। दूसरा, सामने वाले को क्यूरियस कर लिया, यू हैव पुट द हुक। और अच्छा हुक डाला तो कहना सर देखना कैसे यूनिवर्सिटी बदलती है। अब तो वो कहेंगे रुको हिलना नहीं यहाँ से जब तक पूरा नहीं बता दो। तो एडिट योर थॉट्स, व्हाट यू वांट टू कन्वे। सो मेन पॉइंट शुड बी इजीली अंडरस्टूड, स्ट्रेट, क्लीन एंड स्पेसिफिक। एंड मैं आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता, लाइफ में ना रिहर्सल नहीं होती, यू लिव लाइफ अनरिहर्स्ड। वी लिव ऑल आवर डेज अनरिहर्स्ड, वी गो थ्रू आवर लाइफ सिचुएशंस अनरिहर्स्ड। So you get one shot in life for everything. So whatever you are going to write, please ensure that probably this is the only chance you are going to get it through to the other end. Please make it very clear कि कैसे लिखना मैं अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, बट वो बिल्कुल आपको एक ही मौका मिलने वाला है। और इस पूरी दुनिया में याद रखिएगा, कोई भी आइडिया, यहाँ जितने लोग मुझे सुने वो इस बात को समझ ले और याद कर ले कि कोई भी आदमी अपने इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरा क्या भला होगा। आपके से कोई इंटरेस्ट नहीं है सर मेरे पास एक आइडिया है और उसमें ये भला होगा, सामने वाले को अपना भला दिखाई दे रहा है तो लोग, हर कोई अपने, मेरे लिए क्या है, मेरा क्या भला करेगा, अग्रवाल साहब का सेशन क्यों सुनूं। मुझे ध्यान है कि 170 लोग बैठे तो उनके दिमाग में यार ये सुनना तो अग्रवाल साहब को बोल तो दिया, बट है क्या, व्हाट इज इन इट फॉर मी, शुड आई स्टे और शुड आई गो अवे। If you answer those questions in your writing, then probably you have done it. So think like an editor, think like a boss, think like an investor, think like a HOD, think like a VC, think like, I mean, whom you are pitching your idea to. तो वट एवर राइटिंग, जज है, ज्यूरी है, जो भी आपके गाइड है, जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं, मेरे लिए लिख रहे हैं, मुझसे पैसे लेने हैं तो मुझे दिखाइए कि आपको भला होगा, आपके पैसे से आप पैसा कमाओगे। तो अपने आप को, आइडिया को लिखिए और फिर अपने पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन जिसको आप प्रेजेंट करने वाले हैं और उनसे पूछिए, अपने आप से पूछिए क्या जवाब होंगे। मेरे पास आइडिया होगा तो मैं क्या क्वेश्चन करूंगा। यू हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग योर आइडिया। दूसरा, उनकी जगह होके सोचिए कि वो क्या देखना चाहेंगे आइडिया में। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जिसको भी आप आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, क्या वो उसके अंदर है जो सामने वाले को चाहिए। हेलो। और तीसरा,
जो आपने लिखा है क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए ये तीसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, विल दे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। आपने एक ऐसा आइडिया लगाया जिससे रसगुल्ले बनते हैं और सामने वाले को डायबिटीज है, तो उसका इंटरेस्ट उतना नहीं बनेगा। आप बात समझ रहे हैं ना? तो विल ही रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली उसकी सिचुएशन में जहां वो है, क्या वो उस चीज को विल ही टेक इट पॉजिटिवली? आई मीन दैट इज द क्वेश्चन। मैंने बड़ा क्रूड एग्जांपल दिया, बट दैट इज द आइडिया। आपने बेहतरीन कॉफी का आइडिया दिया, अगले के पेट में अल्सर की बीमारी है, डॉक्टरों ने उसे मना किया हुआ है, अब आप कह रहे सर ये आइडिया परचेज कर लो, उसका दिमाग कह रहा है कितना वाहियात काम है, साला लोग मर जाएंगे पी के इसे। Will he respond positively? Think it, know the, तो इसका बैक रीड बिटवीन द लाइंस, जिसको प्रेजेंट करें ना थोड़ा उसके बारे में रिसर्च रखिए कि कौन है क्या, एंड क्या रिजॉल्व करेगा। ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, ऑलवेज स्टार्ट विद एंड इन माइंड। तो इफ यू वांट टू राइट, ऑलवेज राइट बट इफ यू आर एंड इन माइंड। फाइनली इस बात के लिए तैयार रहिए कि आइडिया रिजेक्ट होगा, दरवाजा मुंह पे बंद होगा, धक्का दे दिया जाएगा, फाइल फेंक दी जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगा, चैलेंज किया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो चार दोस्तों को बिठा दीजिए, आइडिया को अच्छी तरह रगड़ लीजिए, धो पोंछ के सर्फ एक्सेल से निकाल लीजिए। बी प्रिपेयर्ड दैट इट विल बी क्वेश्चनड, बी प्रिपेयर्ड दैट इट विल बी चैलेंज्ड, बी प्रिपेयर्ड दैट यू विल बी रिफ्यूज्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शंस, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमेशा प्लान बी। हारने की नहीं हो रही है दोस्त। इफ यू वांट टू रियली डू सम गुड जॉब, always have a B script ready. Always have a B script ready so that you can always ask questions and alternative angle क्या है, ताकि वो जो आपका नैरेटिव है ना वो बचा रहे, वो आइडिया किल ना हो जाए। यार ये तो नहीं चलेगा बॉस, अच्छा सर ये नहीं चलेगा तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या इसे? अच्छा कैन आई कम बैक विद अ डिफरेंट स्टोरी ऑन दिस? कैन वी हैव अ डिफरेंट लाइन? कैन वी गो थ्रू वेस्ट नाउ? यूनिवर्सिटी से निकले हैं, चलो आज उधर से होकर निकल जाएंगे क्या बगरोदा होके साहब? क्या बेवकूफ जैसी बात करता है भाई, चले बगरोदा नहीं होके निकले सर, थोड़ा सा आरएएफ में से निकल के दूसरी तरफ उतर ले आज। ऑलवेज हैव ए प्लान बी रेडी, आई मीन अल्टरनेटिव्स। तो राइट अप भी आपका रेडी हो, प्लान बी राइट अप रेडी हो, तो व्हाट मेक्स ए गुड राइट अप? इट शुड शो दैट देयर इज ए सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन। हेलो फोक्स, मैं जीवन में हमेशा कहता हूं कि what you bring on table, what value you bring on table really matters. You are not what you are what others say you are. आप बॉस के पास गए, what value proposition have you put on table? मेरे पास लोग आते हैं पार्टनरशिप कर लीजिए, मैं कहता हूँ what do you bring? मैं भी करना चाहता हूँ अंबानी से पार्टनरशिप, वो भी मुझसे पूछा तेरे पास क्या, अग्रवाल साहब खाली पीली आ गए। So anytime you are putting up a idea in writing, I hope you understand, it should clearly show that there is a substantial value addition. It should be exclusive. It should be first. Try to show not all of this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीजें आपको दिखानी है, बट इनमें से अगर एक दो चीजें आप दिखा पाएंगे तो बेहतरीन राइटिंग आपकी तब होगी जब उसमें से ये उभर के आएंगी सारी बातें। क्या इसका कोई यूनिक एंगल है, कोई डिफरेंट एंगल है? क्या ये कोई कॉमन सी बात है जो सबको बॉदर कर रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? या किसी ट्रेंड के साथ हम जा रहे हैं? क्या ट्रेंड है आज? आईओटी का ट्रेंड है, दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स, व्हीकल्स, बैटरीज आ रही है, फ्यूचर फ्यूल इज गोइंग टू बी चेंज। पहले पेट्रोल इकोनॉमीज थी, फिर डाटा इकोनॉमीज हुई, अभी बैटरी इकोनॉमीज आने वाली है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आर यू इनटू द ट्रेंड? डू यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड हैव यू इंक्लूडेड इट इन योर राइटिंग? हैव यू मेड इट ए पार्ट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? Have you given some national idea to a local angle or local angle to a national idea? What kind of diversity is coming? So if you have those answers in your writing, it will make a good write-up. So thank you very much for a patient listening. If you have any questions, I'm all ears. And thank you very much for your valued time and attention, folks. You have been a great listener. Thank you very much. Thank you very, very much, Rajiv sir. It became a blend of, a lecture on innovation and again, inspiring us, stimulating us in order to think creatively and be innovative. वो जो बात आपने कही कि दोस्त हारने की नहीं हो रही है, so I'm sure that today all of us are going to take up, that spirit कि हारना तो है ही नहीं, we just have to move forward. If plan A doesn't work, we'll have to go with the plan B. So
now we open the floor for the question answer round. We can have questions from the participants. You can drop your questions in the question answer section or in the chat also. So it's open to all of you. And we welcome all of you to come up with the questions. So sometime Mohit Beniwal has asked me a question कि सर कई बारी लिखते तो हैं, we get stuck and we lose interest, then how can we restart? So sir, question is not about writing, question is about your internal processes. वो हम सबके साथ है, कभी कभी हम इंटरेस्ट खो देते हैं, दोबारा शुरू करना मुश्किल होता है. तो एक मैं आपको टिप दे जाता हूँ सबको, मोहित बेनीवाल जी, have a accountability partner in life. Have a accountability partner in your life. आप कभी मान लीजिए आपने सोचा कि कल से मैं वजन कम करूंगी या घूमने जाऊंगी या जाऊंगा, तो आप नहीं जाते हैं. ये बिल्कुल लिखने के साथ भी ऐसा, कभी कभी आप लिखना चाहते हैं तो कोई ऐसा ढूंढ लीजिए जो सुबह आपको 7 बजे जो घूमता हो, जो अकाउंटेबल हो, वो सुबह कहे कि भैया बाहर खड़ा हूं, तू आ रहा है कितनी देर में. अब आप फंस गए, अब आप मना करना बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे को. तो हैव ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. कोई ऐसा जो लिखता है उसे कहना यार मैंने तो 2 पेज लिखे, तूने क्या किया आज. मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल यही करता हूँ बेनीवाल जी. मैं पिछले कई साल से किताब लिख रहा हूँ और मान के चलिए वो 101वां पेज ही नहीं लिख पाया हूँ अभी तक पिछले 2 साल में. बट देन इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ आई हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स एंड आई एम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स ऑफ अदर पीपल. जो कुछ करना चाह रहे हैं और मैं करता हूँ और वो नहीं करते हैं, तो मैं उनको रोज उंगली करता हूँ, तो बेचारे झक मार के करते हैं. So if you are losing interest, get a accountability partner. 2, ask yourself, why are you losing interest? 3, consult a person like me. Private consultation मैं free में भी दे देता हूँ आप जैसे लोगों को. तो आइए मैं आपको, I will set the whole process right. All right. So thank you very much. Any other questions? वो 7 question answer दिखाई दे रहे हैं भाई. तो sometime we lose. Mohit, I hope I have answered your question. Bobby Narayan says, please send the PPT. We'll do that. सर अपनी सोच को एक्शन में कैसे बदलें? अरे आप तो मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर से सारी दुनिया पूछती है. तो मनु जी, सोच को मैं एक्शन से बदलने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ही को एक्शन लेना पड़ता है. You have to put yourself in action. See, your mind sometimes paralyzes you and you have to use a stop loss in your life. All great businessmen, all great professors, all great human beings in their life has stop loss. जिन्होंने शेयर में ट्रेडिंग करी है उनको पता है कि आप कहते हो कि साहब ये शेयर मैंने 40 का लिया है, मैं 35 से ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, इतने में आप बेच देना. तो जिंदगी में दिमाग में स्टॉप लॉस लगाओ कि इससे ज्यादा नहीं सोचूंगा, बहुत सोच लिया. लेकिन मैं आपको कहूंगा मत सोचो, आप नहीं रोक पाएंगे. तो स्टॉप लॉस का दूसरा ढंग है, यूज योर बॉडी टू यूज स्टॉप लॉस. योर बॉडी नो स्टॉप लॉस. कई बार आप घर पहुंच के कह देती है आज बहुत थकान है, अब थोड़ी देर में चाय दूंगी, या अभी काम नहीं करूंगी, मुझे 1 घंटा आराम करने दो, या आज नहीं करेंगे यार कल मार्केट चलेंगे. Because your body knows how to put stop loss, but your mind doesn't know how to put stop loss. Folks, use stop loss on your mind by using your body. जिस जगह बैठे हैं वहां से चेंज कर लीजिए, जो भी कर रहे हैं वहां से हिलडुल जाइए. यूज योर बॉडी, एक्सरसाइज कीजिए, भाग जाइए, बाहर जाइए, फियांसी से मिलिए, गुलाब देखिए, कुत्तों को देखिए, कुछ भी कीजिए सर, लेकिन जहां बैठे हैं उस जगह से हिलिए, दिमाग को हिलना शुरू होगा. All right, I hope answered the question. Thank you very much. Any other questions? There are 3 more. Suddenly it appears. Self motivation. अरे यार मेरे को, I request Dr. Deepak Botwani and Sangeeta ji to call me for a self motivation session. I will show you how to self confidence, and Bhaskar साहब how to increase your self confidence. I will tell you मेरे जैसा पीटे हुए आदमी का कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है कि सामने वाले को हिला देता हूँ. तो अंकल आप सर अकेले कैसे कोई काम करते? देयर आर मेनी फैक्टर्स और टाइम, मनी एंड पीपल. यस ऑफ कोर्स, हु डजंट से. बट बॉबी, टाइम इज एटर्नल, पीपल यू कैन नॉट कंट्रोल. राइट? दुनिया में जो होना है ना वो लोग हैं, जो वो जो करना है उनको वो करेंगे. आई मीन कैन यू कंट्रोल एनीवन? कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा? कैन यू कंट्रोल योर हस्बैंड? कैन यू कंट्रोल योर वाइफ? कैन यू कंट्रोल योर चाइल्ड? कोई कैसे पैसे खर्च करेगा, कोई क्या सोचता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. इस बात से परवाह करनी छोड़ दीजिए. अगर आपने इस बात से अपने एक्शन अफेक्ट होने दिए कि लोग क्या कहते हैं, तो अपना रिमोट कंट्रोल आपने दूसरों के हाथ में दे दिया. हेलो, किसी ने तारीफ कर दी तो आप खुश, किसी ने गाली दे दी आप दुखी. प्लीज डोंट डू इट. लोगों की परवाह मत करिए. टाइम एटर्नल है, टाइम कहीं नहीं जा रहा है, टाइम यहीं रखा है. यूज योर टाइम यूजफुली, दैट इज योर. सबके पास 24 घंटे हैं सब.
ना तो उसको बचाया जा सकता है, ना कभी फ्रिज में रख के अगले दिन इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कभी खरीदा जा सकता है 1 घंटा। जो भी करना है इन 24 घंटे में, पुल योरसेल्फ इन योर एक्शन, पुल योर ओन स्ट्रिंग्स। मैं कभी आऊंगा इस टॉपिक पे दोबारा बात करूंगा। दिस इज समथिंग ऑफ इंटरेस्ट टू मी। सारा 2 घंटे अगला स्पीकर आपको भी मारेगा, मुझे भी मारेगा कि क्या कर सकते हैं। Anil, I will share it. This is thank you very much for all your appreciation. Shanu, interesting topic domain में कैसे? Please something about journal to specific. Okay, journal to specific के लिए शानू जल्दी से समझ लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए ये कितना बोरिंग टॉपिक था कि कैसे लिखे, मैंने कोशिश करी इसे भी इंटरेस्टिंग बनाए। दुनिया की हर बोरिंग बात को इंटरेस्टिंग ढंग से कहा जा सकता है। बीवी को इससे ये लड़ने की बजाय कि तेरी दाल में रोज नमक तेज है, उसको ये भी कहा जा सकता है, मेरी जान मेरी डार्लिंग मेरे पास बैठ, तेरे को पूरी दाल अपने हाथ से खिलाऊंगा, अगले दिन नमक ठीक हो जाएगा। आई मीन ट्राई समथिंग डिफरेंट। कब तक वही करते रहेंगे जो करते रहे हैं। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे आएंगे साहब? समझिए बेसिक सी बात है। लोगों से पूछे, दीपक जी के पास जाइए, डॉक्टर दीपक के पास, सर आई वांट टू डू समथिंग फॉर द हेल्थ। अगला सवाल होगा भैया हेल्थ में क्या करना चाहते हो? नाउ यू आर गेटिंग टू स्पेसिफिक्स। फिर आप कहोगे सर मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ, किस चीज के लिए बनाना चाहते हो? द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, मोर पीपल यू टेक फ्लैश योर आइडिया, यू बिकम स्पेसिफिक। और मैं कहता हूँ यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो। मैं लोगों को हमेशा सिखाता हूँ, लाइक गोल सेटिंग। सर मैं कुछ करना चाहता हूँ हेल्थ के लिए, बड़ा वेग है। मैं कहता हूँ स्पेसिफिक बताओ कि वजन कम करना चाहता हूँ, फालतू है। कितना करना चाहते हो? नाउ इट इज गेटिंग स्पेसिफिक। कब तक करना चाहते हो? नाउ इट इज गेटिंग मोर स्पेसिफिक। Getting the idea? So when you put timelines, when you put numbers, basically journal doesn't have number. The more specific you get, the more numbers come into your equation. So that makes it more specific, and I talk to people. So these two are the ideas for making from journal to specific. And is there any other questions? हाँ यार, how to rekindle the art of innovation. अनिल आपने मुझे ध्यान से नहीं सुना। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा जो रूटीन है ना, रूटीन को छोड़िए, इनोवेशन करना चाहते हैं। घड़ी लेफ्ट हैंड पे जो लोग बांधते हैं वो कल राइट हैंड पे बांधिए। माउस को अभी उल्टा पकड़ के चलाइएगा थोड़ी देर, आपके ना देखना कैसे बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको कि जिस रास्ते से आज सुबह आए थे ना उस रास्ते से घर जाना मत, और कल सुबह किसी और रास्ते से आना। कुछ अलग करो यार। मैं कह रहा हूँ रूटीन तोड़ो। जब तक रूटीन नहीं तोड़ोगे ना तब तक बात बनेगी नहीं, इनोवेशन नहीं आएगी। लोग कहेंगे, बाप भी कहेगा कि तू साले, मेरे बाप, मैंने जब पहली बार इनोवेट किया मेरे बाप को तो दौरा पड़ने को हो गया था, हार्ट अटैक। ये लौंडा करता क्या है मेरा, कुछ भी उल्टे सीधे काम करता था नए नए में। बट करो ना, आप ही को करना पड़ेगा। थोड़ा क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहिए और उसकी परवाह मत करिए। मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका मतलब एक जिंदा आदमी है और कुछ नया कर रहे हैं। ऑलराइट, तो डल लाइफ में कुछ अलग कीजिए। अगर कुछ भी लाइफ में नहीं है तो एक लड़ाकी गर्लफ्रेंड ले आइए, आधा तो वैसे ही साला समस्या हल हो जाएगी। देखिए आपकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बॉबी, you can connect with me anytime, as and when you want, all open for personally. Shailendra Pandey ji, thank you very much for all the appreciation. And I have, oh yes, I have done not one, I have done plenty of ideas into innovation. I will share it with you. मैं सिर्फ एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ। एक छोटा आइडिया देता हूँ। हम कोका कोला के लिए पैकेजिंग मटेरियल बनाते थे, तो कोका कोला कंपनी के 7 वेरिएंट आते हैं, आप सबको पता हो। थम्स अप, कोका कोला, पानी आता है एक उनका माजा आता है, एक उनका लिम्का आता है। ऐसे 6-7 ब्रांड आते थे और हमेशा हमें डंडा रहता था, हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सा, उनको भी नहीं पता होता था कौन सा बिकेगा और कल वो कौन सा मांग लेंगे। और हम बड़े तड़फड़ाते थे और फिर रोज गाली पड़ती थी और परचेज वाला भी परेशान, हम भी। हमने उसमें बड़ा सिंपल आइडिया लगाया। हमने कहा सर हम डिब्बे पे ना आपके 7 वेरिएंट छाप देते हैं, कोका कोला, थम्स अप, माजा, लिम्का और वो पानी किनले। जो उसके अंदर पैक हो रहा है ना उसको आप टिक कर दो, बाकी को क्रॉस मार दो। अब आपको 7 तरह की इन्वेंट्री नहीं रखनी है, हमें 7 तरह के बॉक्स नहीं बनाने हैं, हमारी आधी समस्या हल होगी। तो एक छोटा एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे बताऊंगा कभी आप आना। मैं बहुत सारी नई नई इनोवेशन इसमें वक्त भी करता रहता हूँ। So thank you very much. Anyone else? Thank you very much, Shailendra Pandey ji. Okay, please turn ideas. Thank you. Shanu Gupta, thank you very much. Thank you very much, everyone. So Vishaka, Yes, done. very very much, sir. I think एक दिन तो हमें एकदम कम पड़ जाएगा. So we'll have to keep a kind of a workshop with you so that we can take all the questions and listen to you more. And we indeed
अभी हमको और मन कर रहा है आपको सुनने का, but time is not allowing us. So we'll Sure. move forward. And I now kindly invite Dr. Deepti Maheshwari, HOD Department of Commerce and IIC convener for the Vishakha, it's Dean Faculty of Commerce. I'm so sorry. I'm extremely sorry. Dean Faculty of Commerce, Dr. Deepti Maheshwari. Please, ma'am. थैंक यू विशाखा मैम। सबसे पहले नमस्कार सर, मैं डॉक्टर दीप्ति महेश्वरी, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। अच्छा, पहली बार आपको सुना, थैंक यू वेरी मच सर। आपका मतलब आई एम हार्टफुल थैंकफुल टू यू सर। आपने बहुत अच्छे से कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है। आप क्रिएटिविटी तो हर कोई कर लेता है सर, कई हद तक हमारे दिमाग में आ जाती है चीजें, लेकिन वो एक्शन में जब तक नहीं आती तब तक वो इनोवेशन फॉर्म में नहीं आती है। किस तरह से हम कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं जो आपने ग्राम वेल के फ्रेजेस बताए, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने। बिल्कुल सही है सर ये वाली बात। आपके आसपास का जो पीयर ग्रुप है वही सबसे पहले खींचता है, या आपके लोग आप आसपास के कहते हैं अरे ये आइडिया फेक है, इस पर आगे काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो शायद कहीं ना कहीं हम उस जगह पर स्टॉप वॉच लगा लेते हैं। आपने बहुत अच्छे से वो चीज बताई किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर हम चेंज करें अपने आप में तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हमारी सोच का जो दायरा है वो और बढ़ेगा। और कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि एट अ टाइम आपको उन चीजों का किस तरह से सोल्यूशन मिलता है। कई बार प्रेशर में भी इंसान बहुत अच्छा काम कर पाता है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर को मैनेज करना आपको आता है और उससे इनोवेशन की चीजें नई नई डेवलप होती हैं। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि अभी MHRD ने IIC इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल्स बनाई हैं जिसमें उन्होंने पॉलिसी इनिशिएट किया है। अगर बच्चे के दिमाग में किसी तरह का कोई आइडिया आ रहा है तो एक इंस्टीट्यूशन किस तरह से उसको आगे लेकर जाए, कैसे उसको आगे हैंड होल्डिंग दे और उसमें AIC किस तरह से उसे सपोर्ट करे, और इंडस्ट्री के साथ अगर लिंकेजेस हैं आपके तो कैसे उसको सपोर्ट करे, ये सारी चीजें उसमें बताई जा रही है। वही सारी चीजें सर आज आपने बताई। आपने वाकई मतलब शब्द नहीं है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में आपने आज बताया। डेफिनेटली बच्चे उस चीज को सीखे भी होंगे, और अगर उनके दिमाग में कोई आइडिया होगा तो उसको किस तरह से लिखते हैं, कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए सोचते समय, वो सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बताई। सर थैंक यू फॉर योर थॉट प्रोवोकिंग एड्रेस एंड ऑल्सो फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। हम हमेशा आपको इसी तरह से सुनते रहेंगे, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और आप हर बार कुछ नया हमें देकर जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। राजीव सर, सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित महिंद्रा जी सर, जिनकी मैं बात कर रही थी, द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ दिस सेशन। वेलकम सुमित जी, वेलकम। ऑनर टू हैव यू हियर। Honor to hear you today, sir. Sumit ji? Yeah, am I audible now? Yes, sir, you are audible, but your video, yes, okay. Your video is also visible. Okay. Is it better now? Yes, yes, sir, yes, sir. So it's an honor to hear you, sir. Sumit ji, your network. Just a minute. Some network issues here. Okay, is it better? Yeah, better than the earlier one, but still we need your bandwidth is little bit low. It is coming on the screen. Okay, let me connect it. Okay, now it should be better in just few minutes, huh? Yeah. So on various platforms you met Rajiv sir. So I thought because of the paucity of time, sir will be leaving us in between. That's why I asked ma'am to convey thanks to our speaker, and मैंने कहा जिससे पहले कि सर मीटिंग हमारे साथ अभी छोड़े तो मुझे लगा कि एक बार सुमित जी से सर मिल चुके हैं। सर वैसे आप काफी फोरम्स पे सुमित जी इज ए पावर हाउस। इज ए पावर हाउस, यस। ऐसे लोगों से तो अपने को ऊर्जा मिलती है, अपनी गाड़ी इन्हीं लोगों से चलती है भाई। डेफिनेटली द सीक्रेट इज पीपल लाइक सुमित। यस सर, यस सर, एंड we all take inspiration from you, sir. So I think Vishakha, it's over to you to please introduce our next speaker. Thank you very much. So as Rajiv sir has told us, now we are moving towards the powerhouse session with Sumit Mahindra sir. So let me just give a brief introduction of Mr. Sumit Mahindra. He has pursued a BS in Environmental Studies from BU and then contributed to prominent national English dailies while he was in New Delhi.
Mr. Sumit is the third generation entrepreneur, launched RTI Wala as a blog in late 2017 and scaled to a full-fledged growing startup with more than 86,000 users. He has received multiple awards, won many national level B Plan startup competitions. The prominent ones are the Dream Startup Challenge CII and YI, Governance 2020 by Deputy CM Gujarat, and Top 25 National Startup by TIE Lucknow and Venture Catalysts. He and his startups have been covered by national media, and important to mention here are the Thai Silicon Valley and the US in 2020. RTI Wala is a remote first citizen centric startup empowering the masses through sensible content and affordable legal services. Mr. Sumit's venture, RTI Wala, helps people in exercising their right to information by drafting and filing online RTI applications, consumer right complaints, and services alike, also providing 10-minute micro consultation on RTI and legal issues. Most importantly, RTIwala.com website provides data-driven and analytically researched content. So today, Mr. Sumit is going to discuss on the review of existing literature, which is the most essential part in order to move ahead in the process of research and development for innovation. Like the previous session, we'll be taking the queries of the participants in the end after Mr. Sumit's speech. So over to you, sir. Please welcome and take over, and please carry forward with the session, sir. Thank you so much, Vizaka ma'am. I'm honored to have you all here. I would be sharing how we started and the way we research. And so I have a small slide with me to share with you. I hope it's visible to you all. Yes, yes, it is visible. Perfect. Okay. So here I'm gonna start. So it all started with a blog. And in our company, in our startup, the research and innovation plays a very key role. A very key role where it helps us not only to innovate the product, scale up the process, also to make our clients super happy. And that's all good, all happening just because we constantly research, we constantly innovate. So here it start. We started in late 2017, around July. It was just a Sumit blog. sir, Sumit sir, can we make it in slide mode if it is possible? Yeah, just a minute. Huh? Let me Yeah. check it. Give me a minute. Huh? Okay, is it visible? Yes, sir, it is visible. Perfect. So here we started it in July 2017. It was just a blog, and we had some very crucial data with which we started. We published the first blog how many expensive gifts gifted to ministers and bureaucrats, and that's what boomerang. In next 1.5 week, we got so many upvotes, we got so many shares, and every single day the WordPress host just alerting us that your website is getting lots of traffic, it's booming a lot, and that's how we started. So it was just a very detailed analytical research we did with existing content, and we published it. We know it's something new. We were quite aware that it's unpublished, something unpublished and quite totally groundbreaking. That's how we put it into the limelight. We shared it just on few media house, social media networks, and then it's all history. This is the start. So as sir told, Rajiv sir told in his presentation that you should have some quantifiable data with yourself. So that's a very important aspect of a research. If you are have been conceptualizing or trying to build something, then you should have metrics, some yardstick to validate your research, validate your hypothesis, and this is what we had.
So it was there were sectors, six criterions on which we have evaluated our startup vis-a-vis the established one. So we realized that yes, we have a very high unique visitor metrics, and the average time is being spent in our website was almost four times of the other combined as such. Even the bounce rate is really just one tenth of the what the industry uh, partners are getting as of now. So you should have students. You should have a one thing in mind. Whenever you are building a hypothesis, you should validate it based on the parameters which you have set. If you have not set the parameters, go research and to those uh, 5 to 6 parameters which are industry standard. Doing something similar, say maybe an so you should research whether this app is in market, how many users are using it, what's the average time they were spending, is there's any payment they are charging. So that's what you should go and talk about or pick up as such. Then comes the payment. So what we started is that like we started with a media house, okay, based on the requirement, based on the need and the problem, pivoted. And in June 2018, we realized that we are just depleting our resources by not using it up to most. And then we thought, why don't we charge people as we are putting depleting our resources in valuable assets in the form of helping people. So we made a first payment. First, we asked our first client to make a payment, and that's how we got our first Uh, client, first paid order. Sumit And sir, then, yeah, Sumit sir, sorry to interrupt in between, but your voice is not coming like very clearly. So we are not able to hear okay, from your give side. me a minute, huh? Yeah, sir, please increase the bandwidth because it is creating a lot of distortion in the listening. Okay, just a minute, huh? Yeah, because it is all that's students and scholars or teachers who are sitting with us. They want to know the real we can secrets of your rise Okay, in the business. So give me a minute, huh? yeah, it should not be having any technical glitch. So I request all the participants to be patient for this technical glitch, and Is it better now? I think it is better. If you continue in between, if I'll Sangeeta, find it out ma'am, is again. it better? Yeah, it is better. It is better. Yes, Sumit sir, please continue. Sumit sir, am Hello. I audible? Sumit ji, am I audible? Hello. Yes, Sumit ji, am I audible to you? Yeah, you're audible. Is it better, Yes, ma'am? please continue. It is better than earlier. Please continue. Perfect. Yeah. So we realized the need. We saw the need as such over here, and then how we started. So we started collecting payment. We pivoted from media tech startup, media tech startup to a service-led startup. And this is the journey. So it was just a single a small team. We it just was our first ever hiring poster, and then now it's growing into a team of 16 odd people, and we are constantly hiring and growing. And then comes the fame. So if you're building something which people which solves a problem which needs people, and then suddenly you get the money, you get the fame. And now let's come to the market research part, the main topic of this session. So how we did the market research and what first, well, let me tell you what market research is all about. So it's all about you have, so first as Rajiv said told, you have to have at least a problem, a very detailed, clear cut, succinct problem which you have to solve. So what we identified in our case was first the availability of sensible knowledge driven content that was not there. So that's why the first post became viral because it wasn't there and we published it, and then certainly people started liking it. Certain people got to know that there's something new which we should consume. There's something sensible which things that was not there, that's increased their knowledge. Okay, so that's how we come up. Then comes so generally market research is not just about the product; it's about the customers. You have to know which segment of the customer is going to buy.
So if a student ever thought of doing a market research, they want to document it, then they should understand first the customer, like whether they are which customer they are going to buy, how they are going to position their pricing. Then comes the market. So suppose there are three market we can say about. One, the poorer who are basically into buying the basic necessity. Then comes the middle class as such, so they have the basic needs. Now they want something for entertainment. They want something for recreation. And then comes the over class. So they have everything. They have their basic needs are fulfilled. They have pleasure of time. They have pleasure of money. Then they comes for the expensive thing. So while doing a market research, please be clear about your target audience, the market which you are into, the market for which you are building, the market for which you wanna build as such. Then, while doing a market research, what the valuable thing we got from it, how the customer interacts. So, in our case, what we realize is that now people know that this article is something they will publishing good news based on the market, based on the content they are getting through filing RTI. It means that they are quite good in filing RTI. It means that they are excellent. And then they started teaching us this for a little bit for us, and that we realize that that's customer insight. That's how we thought of voting. That's how we thought of further moving in different directions. Primary market research is of two types, mainly primary and secondary. So what you collected from the internet, what you collect from the journals, what you collect from the published content is considered as a secondary research. So let me explain you. In our case, we realized that it's a market size. Okay. Our legal industry is quite very much segmented, very much fragmented and unorganized. Like you have a lawyer who is charging you 1,000, and then there are lawyers who are charging you around 10 lakh for this single hearing. So it's very much unorganized. Okay, that's what we validators we call from a secondary. Then comes what you call how authentic is that. So when you doing a start, when you're doing market research, you please go to very published, very prominent publishers. In our case, we opted for the KPMG report, and there are big four companies you can say. So KPMG, PwC, Deloitte, and there's one more, McKinsey. So these are the companies which have a very big team researchers, and they come up with a very prominent, comprehensive uh, research report. So go through that. That's how you should do the second research. Why go to second research first? At least it gives you dimension in which direction you have to offer a secondary research. The how you have to do the secondary research. What are the parameters? What are the things you should consider doing a primary research? So that's what I'm telling you. So secondly, then after doing a secondary research, you have to come to primary research. So it you by now you would have been enough data how you should go ahead, like what are the counter you should go for a primary research. So in our case it's online, so we did started with the phone calling. We started with typing messages in the groups, and from there we started getting connected with the people. They started reaching out. We had a very elaborate discussion with our customers, with our potential clients, and that's how we did. So generally, primary research is all about the data driven. So it's all start from the you and the person you're talking with. Secondly, something fresh, you which you have never read, which has not been published, because it's all about interactive in nature, and it's the first interaction you have with the interviewers, with the potential clients. So it's very important. I wish to share one very amazing anecdote over here. So here you don't not only interact with customers, but the experts and thought leaders, also influencers. So I hope you all know about the Zomato. So whenever Zomato launch any new product, they contact one person, and that's my cousin brother. So he's a very famous influencer, food blogger. Fashion producer. So you may not believe it was Dipinder Goyal, the founder of Zomato himself called. सुमित जी Yeah, yes, ma'am. एक्चुअली कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी मुझे मैसेज आ रहा है कंटिन्यूअसली कि आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. ओके मैम, मुझे आप 1 मिनट का दीजिएगा, मैं कनेक्शन हाँ. चेंज करना होगा, ठीक है. हाँ हाँ आप करिए करिए क्योंकि फिर वो आपका जो इनपुट है वो पूरा नहीं पहुंच पाएगा. ओके ठीक है ठीक है. Because they are keen to know the things from you. So they Perfect, are perfect. messaging me that, Just give me yes. a minute's time. I Yeah, do take a little longer. Please take your time and please be in full coverage so that we can Okay. have these things from you.
Perfect. Meanwhile, the participants can really click this photograph of the secondary and primary research, because this is a very important thing when we go for any kind of new ideas or innovations which is coming in our mind. We have to validate that with the help of these two collection tools. Okay, Sangeeta ma'am, is it all better? Now it's completely better, sir. Please go on. Perfect, sounds good. So I just replaced my headphone. Okay. Fine. So yeah. So as I'm talking about the primary research, so मैं अब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ. तो Zomato का नाम आप सबने सुना होगा और उसके जो फाउंडर है मिस्टर दीपेंद्र गोयल. So whenever they launch any new product, they call around 30 odd peoples, and one of them is my brother, so cousin brother. So he's also chief marketing officer at our startup. He's a co-founder and is a very famous influencer based at Bangalore. So what happens is that they contact him. He personally calls him. He invites Gaurav to a very 5-star level hotel, and then they have a very focused research group discussion over there. So वो बताते नहीं कि क्या launch कर रहे हैं, वो बस क्वेश्चंस पूछते जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका रिएक्शंस क्या है. They have a very good big thing. So around 30 people कैमरे के उस पार, ग्लास के उस पार सिर्फ नोट कर रहे हैं कि उनका रिएक्शंस क्या है, क्या वो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस क्या है, और वो आपस में जब बात करके बोलते हैं कि हाँ ये सही है, तो फिर वो टिक लगाते हैं. So they have a very detailed long questionnaire with them, and they just don't know that we are doing this kind of market research. So मेरे भाई ने जब मुझे पता मैं भी नहीं समझ पाया, but हाँ, when we did the same with our clients, then we realized yeah, so they were doing a primary market research. So primary market research not happens just when you launch a new product. It happens every single time when you iterate, when you pivot, when you bring some new features to it. Because it's what matters is that whether this new feature would work or not. That's the very important, and that's why it happens every time. So how we did the market research in our case, I will explain it to you in next slide. So before that, let me tell you more into primary market research, what it's all about and how you owns it, why we do it. Okay. So generally, what happens in primary market research, we collect the data. We collect there are some methodology, proven time-tested methodologies. So you collect the data. Who is your customer? How much he could pay? What are the means they could reach to you? What are the means you could reach to them? And what would be the life cycle of a customer, how long you could hold them. Okay, that's the one. But please understand, and let me go back to the topic of first speaker. You have to have a very clear defined problem. Until unless if you don't have a defined problem, you won't do a primary market research. Then comes to the technical aspect of the primary market research. So you should have at least 10 to 15 questionnaires with us, nothing less than 10, but it may go as high as 20. So the Zomato had 30 questions with them. Okay, so you can have anywhere between 15 to 20, but the matter you realize that you have at least 10 questions, you may increase further down the line after understanding what are the important or crucial aspects for your product or market research. Then comes subject to whom you're going to speak. Okay, so make sure that you don't have one single strata as such. हमारे केस में हम लोग ऑन डिमांड ऑनलाइन लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो आज के समय में लीगल नीड हर एक को है. हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग के बाद थर्ड फोर्थ नीड आती है, वो है लीगल नीड. एंड यू मे नॉट बिलीव दैट इट्स अफेक्टिंग अराउंड 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. सो दैट्स वाई हम लोगों ने देखा कि एक गरीब से गरीब तबके का इंसान जब उसे घर की जरूरत पड़ती है तो उसको लीगल नीड्स होती है. एक बड़े से बड़ा इंडस्ट्री जब जैसे वोडाफोन आइडिया का केस हो गया या अमेजोन वर्सेस रिलायंस हो गया, सो दे वांट टू हायर great lawyers. So certainly in our primary market research, we have to reach out to every single person out there in the arena, whether they are a laborer or maybe a minister. Okay, so next come is the PMR. Why and why what are the reasons why we do that? Okay, so again as we know that we have to have a problem with us, now we are building a solution, and for that we constantly have to iterate towards the इम्प्रूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स बिल्डिंग प्रोडक्ट टुवर्ड इम्प्रूविंग इट. यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चैलेंज हम लोगों ने फेस किया और हमारे मेंटर्स ने हम लोगों को समझाया कि हम लोग को आइडिया बायस नहीं रखना है. हम लोग जब
प्राइमरी मार्केट रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग उन पे अपना प्रोडक्ट इम्पोज कर रहे थे. वी वर टॉकिंग मोर ऑफ अवर प्रोडक्ट रादर देन लिसनिंग टू देम, एंड दैट्स द रॉन्ग वी वर डूइंग, एंड दैट्स व्हाट वी वांट यू टू डू, अवॉइड दैट. कभी भी आप ये मत सोचिए कि अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया है या बिल्डिंग कर रहे हैं. आप ये सोचिए कि अभी आपको प्रोडक्ट बनाना है, अभी आपको सॉल्यूशन बनाना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइमरी मार्केट रिसर्च का, कि हमेशा हमेशा एक ब्लैंक शीट की तरह आप जाएं. क्योंकि आपको आपने सपोज 10 लोगों से बात की, पर जो एस्पेक्ट उन 10 लोगों ने बताया शायद से आने वाले 20 लोग वो एस्पेक्ट के बारे में बात ही ना करें. ये बिल्कुल हम लोगों ने देखा, और यही आपको भी रखना है कि कभी भी आप सॉल्यूशन बायस ना हो. सेकंड प्रॉब्लम जो आती है, कभी भी कोशिश करिएगा कि कस्टमर से अगर पी टू पीर इंटरेक्शन होता है, जैसे कि अभी आप स्टूडेंट्स हैं, और सबसे अच्छा आपके लिए मार्केट रिसर्च होगा कि आप ऐसी जगह जाएं जहां पे अपन से बात कर सके. जैसे कि एक उसे बोलते हैं वाटर होल एरियाज. आप न्यू मार्केट जाइए या कोई अच्छा पार्क जाइए. इवन अगर कोई बिजी स्ट्रीट होती है तो वहां पे उनसे इंटरेक्ट करिए. वो सबसे अच्छा जगह है, क्योंकि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में है और वो आपको अच्छे से बता सकते हैं. ठीक है. सो ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एज सच. इफ यू आर बिल्डिंग प्रोडक्ट से आप एक हॉस्पिटल से या हेल्थ रिलेटेड कोई इक्विपमेंट या ऐप बना रहे हैं, तो फिर आपको हॉस्पिटल के आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा. मेक श्योर दैट दे आर हैव ऑलरेडी बीन इनटू ओपीडी एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स देयर होम रादर द वन हु आर इन हरी. ओके. Then comes the research goals. आप कोशिश करिएगा कि आपको वेरी क्लियर डिफाइंड रिसर्च गोल्स हैं. आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम सिंपलीफाइड और सिंपलेस्ट मैनर में आप उसे लिख सकें कि क्या आपके कौन आपके बायर्स हो सकते हैं, कौन आपके यूजर्स है. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा. ये दोनों टेक्निकल चीजें हैं. बायर्स अलग हो सकते हैं, यूजर्स अलग हो सकते हैं. जैसे हमारे केस में बायर कई बार होता है कि जैसे कि सपोज देयर आर केसेस व्हेन वी डू हेल्प पीपल इन डिवोर्सेस. ओके. सो वहाँ पे बायर जनरली लड़की के भाई होते हैं या उनके पापा होते हैं, बट यूजर्स वो खुद होते हैं. ठीक है. तो सिमिलरली एक और केस बताता हूँ जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. तो यहाँ पे बायर्स जो हैं जो एनआरआईज हुए या फिर देवर सेंट्रल गवर्नमेंट और से प्राइवेट एम्प्लॉयड, बट यूजर्स आर देयर ओल्ड एज पेरेंट्स. ओके. तो दीज आर टू डिफरेंट. आप कभी भी प्राइमरी मार्केट रिसर्च करें तो एक रिसर्च सर्वे होना चाहिए बायर्स के लिए और एक होना चाहिए यूजर्स के लिए. और जब आप हो सके पहले ही डिफाइन कर लीजिए, आर योर बायर्स एंड यूजर्स वन एंड सेम और दे आर डिफरेंट. देन कम्स अबाउट द कंटेक्स्ट. सो कभी भी आप हो सके तो कंटेक्स्ट थोड़ा ध्यान दीजिए. जैसे कि जोमेटो है, तो जोमेटो में उन्होंने किसी हाउस होल्ड लेडी को नहीं उन्होंने देखा कि भाई उनको उन्होंने अपने इसमें इंक्लूड नहीं किया. उन्होंने किसे इंक्लूड किया? फूड इन्फ्लुएंसर्स को. क्यों इंक्लूड किया? कि उन्हें पता है कि अभी होटल्स में क्या चल रहा है, क्या मेन्यू उनके लिए फेमस है, क्या एक प्राइसिंग सेगमेंट, कंफर्टेबल प्राइसिंग सेगमेंट क्या है एक बायर के लिए. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर कंटेक्स्ट. एंड देन कम द यूज केस. हमारे केस में यूज केस क्या है? सिंपल सी ड्राफ्टिंग, फाइलिंग. बट अगर आप फर्दर उसको डीप डाउन करें, हाँ, देन देयर आर द बिग कंपनीज हु आर पुटिंग देयर लीगल एसोसिएट्स, देयर लीगल पार्टनर्स कनेक्टिंग थ्रू अस. सो वो भी एक यूज केस है जो हमने पहले स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि हाँ, वी कैन बी एन आउटसोर्सिंग फॉर पार्टनर फॉर मेनी लॉयर्स एंड लीगल फर्म्स. Then comes to solution research. आप फर्दर आप अपने मार्केट रिसर्च को बाइफर्मेंट करिएगा एक प्रॉब्लम रिसर्च में और प्रॉब्लम रिसर्च के दो पार्ट्स, बायर के रेस्पेक्ट में और यूजर्स के रेस्पेक्ट में. देन कम्स टू सोल्यूशन रिसर्च. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कब तक यूज करते हैं लोग और कितना यूज करते हैं. आप सभी जानते हैं शायद फेसबुक पे कई बार सर्वे आता है कि तो उस सर्वे जनरली दैट्स द सेम गोल. In that survey they ask you how long you use Facebook, how many times a day you come on Facebook, what's the primary reason of you using a Facebook. So that's why you have to think of usability, you have to think of utility of a product or a services. Then prioritize. इस पहले आप लोग सोच रहे थे कि शायद से फेसबुक हमारे लाइफ का कभी इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं बनेगा, पर आज अगर हम लोग दिन में 2 बार या 3 बार सुबह उठते से ही इवन फेसबुक या व्हाट्सएप ना खोले तो हम लोगों को बेचैनी सी हो सकती है. वी फील लिटिल अनकंफर्टेबल. सो दैट्स हाउ वी हैव प्रायोरिटाइज फेसबुक मोर इम्पोर्टेंट देन आवर मॉर्निंग टी और कॉफी. Then comes about the pricing elasticity. So you may think that some products or services totally free, okay, but they have
the different kind of pricing structure. We have a coffee at CCD or say backend stick, and then we have a coffee which is in Starbucks, which is coming in Britain market. So the pricing is quite different. Okay, that's the pricing elasticity comes as such. Whether the customer is able to afford, whether the customer is able to get the same multiple times or not. And then comes the customer satisfaction. If you think of a Starbucks, then certainly what comes into mind, a very cozy environment, an experience that you would like going to put a selfie of this Starbucks which on Instagram account. So that's in our case as well. हम आप लोगों को सोच के थोड़ा सा हैरानी होगी कि हम लोग को अब तक सिर्फ 2 4 स्टार रिव्यूज मिले हैं, बाकी सारे 5 स्टार रिव्यूज. So we are very much focused into customer experience, or even you can say that's called CX. So we are very CX obsessed startup. Next aspect of the PMR is how we do that. Okay, so अगर आप लोग suppose group में PMR करते हैं, primary market research करते हैं, then it's good. Should have a team of at least 3 to 15, whatever the team size based on your group, based on your startup team as such, and then you delegate different tasks to different people. So हमारे इसमें सिर्फ 4 लोगों ने हम लोगों ने PMR किया था. That's 2 from the core team and 2 from the mid-level team, and rest 2 were there to supervise and check us, correct us. Okay, so what we did is that we had how we started, we done our market research. Let me tell you that. So we posted our this what you call content and many groups, Facebook groups, and we had numbers of leads, the mobile number of our leads who contacted us but never availed our services. And then we stand near some legal जो lawyers की जो वो होते हैं, जैसे कि आपने मोतीलाल नेहरू कॉलेज के सामने देखा होगा. So there are some advocates, there are some notary people. So we stand over there, we interacted with the people, and we said that अगर यही चीज आपको ऑनलाइन मिलेगी, whether you would avail it or not, and how you got to know about it, what's the pricing range you are comfortable with. So that's how we did our primary market research. We evaluated all the three, online, face to face, as well as phone. Though people are not that much mail savvy, but yes, we did created a small survey as well on survey tools. Then this is how we used to do the primary market research. कुछ अभी भी हमारे टीम मेंबर्स हैं जो ग्रुप्स में एक लिंक भेजते हैं, सिंपल सा लिंक है cc.rt.link/PMR. If you are online at this moment, you could go and see that you would get this kind of form. Over there, you just have to fill 3 things: your time where you on which you wish to get a call, and then name and number, email ID, and we will call you back. एंड गेस व्हाट, ये पीएमआर करने के बाद हम लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ, पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस थी, दैट्स ऑनलाइन आरटीआई ड्राफ्टिंग. एंड देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द डिमांड. People don't want to disclose their name, their address, so we come up with the anonymous RTI. Then people want to discuss first before filing an RTA. People want to discuss with us whether filing an RTA would be feasible and have a result or not. So we come up with a micro consultation. Earlier हम लोग फ्री में मदद कर रहे थे, फिर हमने सोचा क्यों ना उस 10 मिनट की मदद के भी हम पैसे लें उनसे. And then it started working, selling as a hot cake for us. And this is the what aspect and how aspect as well. So once you have profiled your clients, when you did demographic and psychographic profiles, demographic it means कि आपके कस्टमर सिर्फ सिटी बेस्ड रहेंगे, मेट्रो बेस्ड रहेंगे, या फिर वो विलेज टाउन बेस्ड भी रहेंगे. एंड देन साइकोग्राफिक, वेदर दे आर इन विच स्टेट ऑफ माइंड. हमारे केस में क्या होता है, साइकोग्राफिक थोड़ी सी खराब रहती है क्लाइंट की, क्योंकि वो हमेशा एक दे वर इन नीड, दे वर इन keen pulsating desire to fix their legal issues. That's why. So they were little anxious, they are little irritated as with the system. So that's why when they reach us. Okay, then what is that? So again, as I said earlier, यहाँ पे आप देखेंगे watering holes. अगर suppose आप millennials हैं और आपका target audience senior citizens हैं, then you should go to park in the morning or maybe in evening. Suppose you are coming up with an app for a youth to become friends, something similar to Facebook, then yes, you should hang out in front of cinema halls, maybe that's closed as of now, so parks or some good cafes, or even in front of college or coachings. So these are called watering holes where you should go, and you should realize that these are the area where your target audience, the subjects of your research would be available. Then comes to the how aspect. Again, I would start how you should do.
Okay, so first, you should have an this what you call an questionnaire with us. Okay, that's what we call induction. Then you should immerse while in a conversation. You should understand their every aspect, their every word, and have a very counteractive questions, clearly able to noting that down. Then interact as much as possible and then come ideate after जब आपके पास काफी सारा डेटा होगा कि कस्टमर क्या चाहता है, कितना प्राइसिंग वो देने के लिए कंफर्टेबल है, और अगर उसको ये प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, then you come go to the innovate aspect again. Once you innovate, आपने देखा होगा कि जोमेटो ने पहले जोमेटो लॉन्च किया और उसके बाद फिर जोमेटो गोल्ड लॉन्च किया, अभी जोमेटो प्रो आ गया है. ये सिमिलर ऑर्डर यू कुड सी Oyo has come up with Oyo Plus. Then now it's when I booked recently Oyo, it's showing Oyo Wizard. So that they're coming up with many membership plans as such. So that's how they are innovating, they are ideating, they are inducting, knowing the people, like there are frequent travelers. They want Oyo to be readily available and some great offers on their frequent bookings. So that's how they come up with a membership. एंड दिस इज द हाउ एस्पेक्ट. सो हमारा गोल कभी भी ये नहीं हो कि हम उसे अपना गोल जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इम्पोज करें, बल्कि हम सुने कि क्या वो बना रहे हैं, क्या उनका प्रॉब्लम है, क्या वो चाह रहे हैं, कितना वो पेमेंट कर सकते हैं. ओके, और कई बार पता है कोशिश करिएगा कि एक आपके दिमाग में सिर्फ सर्वे ही ना हो, कुछ ओपन एंड क्वेश्चंस भी रखिए. जैसे कि सपोज एक बार जब मैंने पीएमआर किया, सो मैंने पूछा कि आप कहाँ पे हैं. उन्होंने बताया कि राइट नाउ आई एम जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम माय ऑफिस एंड आई एम सिटिंग इन अ बेंच drinking coffee. And I asked which coffee you are drinking, and he said I'm taking latte. The guy was from a BKC, that's a very posh area in Mumbai, and he was very cozy at that time. He said that I had a rough day in office and I was just so much bogged up. So we discussed about that. So we put the PMR aside, and then after once we had a very candid discussion, he comes back to the PMR and he really, it was around 35 minutes call and that was most insightful one. And you may be surprised to know that that guy is from a KPMG, and in next 1 month we got 11 clients from the KPMG, from SVP post to the senior managers. So that's how once you have realized that how your customer is have feeling the pain and how you could fix that, certainly they will be your customer, and you have very high LTV, lifetime value of a customer. There would be very high number of repeat customers. Then comes is that you should not share or think of solution. हमने कभी भी उसे ये इम्पोज बताया नहीं कि like this is a solution we are building or that's the solution which we have built. Rather, we were just thinking if there would be the solution, what would be your action, if this would be the pricing, how you would be comfortable in paying that. So you should always put yourself in the inquiry mode, never ever be in a judgmental mode, never ever be in an answerable mode, always be in inquiry or interrogative mode. Okay, so this is the very important slide. I want everyone here to take a screenshot of it. So you have to write a very detailed research plan. As I told, you should start with the problem which you have in mind, have every aspects of it, okay, and then come up with every possible people, you can say subject, okay, who has this problem. Okay, then you have to define recruitment criteria, like what you're going to ask. Okay, how long this would be the questionnaire, how many questions would be there. Okay, if the answer would be this, then what would be your counter questions. And then you have to do a recruitment of the people who are coming here with. अगर suppose आपकी 3 लोगों की टीम है, तो एक है जो लीड्स लाएगा, ये कॉन्टेक्ट नंबर्स लाएगा, दूसरा वो जो क्वेश्चंस बनाएगा, और तीसरा वो जो उनसे कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा. फिर जब आपके पास सारे रिस्पॉन्सेस आ जाएं, तब आप उसको असिमुलेट करिए, असेस करिए. ओके, सो डेवलप सपोर्टिंग कंटेंट इज अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट. Okay, subjects is those who are your friends or maybe your colleagues who are going to participate in this from research. Okay, and then you run the program. Okay, whatever the results you're getting, keep very open eye for it. Okay, don't be a solution biased. आपको ये ना सोचे कि नहीं ये 2 आंसर्स हम लोगों को गलत मिल रहे हैं या ये लोग कुछ अलग सोचते हैं. नहीं, आप सोचिए कि अगर इवन 2 कस्टमर भी आपके लिए कुछ नया एस्पेक्ट ला रहे हैं, नई प्रॉब्लम ला रहे हैं, तो उसको आपको देखना है, किस तरह से उसको समझना है. एंड आप
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. आप लोग सोच के हैरान रहेंगे कि गूगल जो इतनी अच्छी कंपनी है, उन्होंने अभी तक 224 प्रोडक्ट्स अपने गड़ा दिए हैं, उनकी कब्र खोद चुके हैं. ओके, सो दीज आर वेरी फेमस वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट. गूगल, दैट्स वन इज जी सीमेंट्री एंड सेकंड इज व्हाट यू कॉल गूगल ग्रेवयार्ड. ओके, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी स्टार्टअप्स या छोटी कंपनीज ही अगर इनोवेट नहीं करती तो मरते हैं. इवन बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ही उनको बरी करना पड़ता है. मे बी मेनी प्रोफेसर्स हु आर हियर मे नो अबाउट द Orkut. Okay, that's once what the Facebook today is. Then there's one company called HTC. Okay, that builds a very famous, very prominent Android phones. Then there's a Micromax. So if you don't innovate, certainly you are gonna die. Your company gonna die. Okay, your product line gonna die. You have to disband your teams at some point of time. So that's why innovation is very very important. And these are some companies which have not innovated, and certainly they are testing the dust. Okay, Motorola was once a market leader in the mobile telephony, as so does the Nokia in the feature phones. And there was what the prestige holds today. The iPhone is once the BlackBerry. So similarly, innovation is very very important aspect. And this is my login details. So in case if you ever want to know about me on wish to connect with me on internet, just simply search Google SUMT7, and that's all. Now I'm all open for questions. Thank you very much, Sumit sir. This was really an insightful session. I think we got whole lot of idea on how to do the research, how to look at the existing research in order to develop the innovation, how to present the innovation idea, how to think about it. So now the floor is open for the questions. Participants are heartily invited to come up with their questions if they have any. You can drop your message in the question answer section or also in the chat box. And if you're able to unmute yourself, you can also unmute and ask the question if you want. All of you are most invited. I think we have, Sumit sir has been so effectively discussing about the subject that all the queries are completely resolved. So, shall we proceed to conclude the session, Sangeeta ma'am? I think, sir, Sumit sir, can you please stop sharing the screen? Sumit sir? Yeah, of course. Just a minute. Yeah. So, okay, so Vishaka ma'am, is there any Yes, ma'am. specific So, questions? ma'am, there is no question as for now. As per now, okay. Yes. Fine. So, yes, you're very right. Sir has given deep insights, and he has given a real-time research example. Right. Because he has actually he has really done a lot of research, and as I said in the beginning that he fetched a lot of awards, accolades, and right now he's pioneer in this. And the very new thing she has taken, that is RTI Wala. The name itself is very innovative. Right. To say more. So, is Deepak Also, sir? I think, ma'am, I just wanted to point out this one thing that, many people only share about the innovations which have been successful. But as you're, in the concluding slides, Mr. Sumit has also discussed about the failed ideas, the failed innovations, which give a way for us to, look at why did they fail? What are the reasons for the failure of some innovations? So I think this also gives us some idea on how we can go forward with the research. We can read the study the case studies, look at them and understand why did they fail. So I think this was something remarkable that I think was important to mention here. So if you allow, Sangeeta ma'am, so shall we? Yes, ma'am. Actually, I was looking for Deepak sir. Deepak sir, are you there? Yes, he is there. No, I but think he's there. I think sir sir is a little bit occupied in some some certain assignment has come to him. So Oh, okay, fine. So I think
I'll take charge from Deepak's side to Please, please conclude conclude the the session, session. yes. Yeah. So basically, I hope all the attendees, all the panel members, those who are with us, definitely they must have got an insight about the innovation, about the writing of an innovation. To sum up, we started with the very energetic person who has already all-time very long experience in industry, and he shared his all points of creativity and innovation and how to inculcate that in your behavior. That's what he focused on. Moving further, we really we are privileged to have the listening from Sumit Mahindra sir, because I personally heard him on a lot of platforms, and I realized that his insights, his real-time research which he shared about the primary and secondary research and about how to be innovative, looking after the other things also. Like लास्ट में बहुत सही आपने बोला कि गूगल क्या नोकिया अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बट वो डाई कर जाते हैं बिकॉज वो इनोवेशन को लैक करते हैं. तो ये देख लेना कि बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है और उसके बाद हम कुछ भी ना करें, दिस इज नॉट जस्टिफाइड. और शायद इसी चीज को हमारे अभी मैंने जैसे भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दौरान ये मोटिवेट किया जा रहा है, आपको बार बार इस बात के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि आप कुछ सोचिए, कुछ लेकर आइए. इट मे बी वेग बट देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट. ये जो सेशन था, इसका जो टैगिंग था, उसको जस्टिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था, हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम इसे किस दिशा में ले जाएं. बहरहाल सबके डिस्कशन के साथ और सुमित और अग्रवाल सर के सहयोग के साथ मुझे लगता है कि आज हमारे जो अटेंडीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ई सेल मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और भी टीचर्स हमारे साथ हैं, डेफिनेटली उन्होंने एक राह पकड़ी होगी. और we always say the documentation is important part. So as sir says that you keep a diary and pen with you, and anytime when the idea triggers in your mind, please jot down that, then you validate it. Yes, patenting is also a part. मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती, तो अग्रवाल सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप क्लोज ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि हम जब अपना आइडिया शेयर कर देते हैं, वो कई बार आई थिंक सुमित मानेंगे इस बात को कि वो लीक हो जाता है. तो जब वो लीक हो जाता है तो और उसको स्टोल भी कर सकता है. तो बच्चे ये गलती भी ना करें कि, तो उसके लिए ही ये IIC सेल है, उसी के लिए दीपक सर हैं, उसी के लिए आपके सारे एमिनेंट डीन्स और HODs हमारे साथ जो यहाँ हैं, वो हैं कि आप उनसे आके क्लोज ग्रुप में बात करें, लेकिन बात करें. सवाल अभी यही आता है बार बार कि हमसे बात नहीं होती. तो बात निकलती है तो दूर तक भी जाती है, और बात से बात निकल के आती है तो कोई रास्ता भी निकल के आता है. तो ये सारी चीजें पैरेलल चलती हैं, बट बच्चे को जो है वो माइंड चलाना है. बच्चों के थैंक्स आ रहे हैं सुमित जी, और उनके अप्लॉज भी आ रहे हैं आपके लिए. तो आई थैंक सुमित ऑन बिहाफ ऑफ all the faculty of Commerce, Humanities and Liberal Arts and Education team, and on behalf of IIC, on behalf of Deepak sir, and on behalf of entire university. And we are indeed privileged to have you with us as an incubatee, I think. Okay, and you really made us too proud on a lot of platforms. So I'm looking forward for the mentorship from Sumit in the near future. And I'm really looking forward for my new students to come up with a lot of innovative ideas, whether in research also. In research, if you're pursuing doctoral program, nobody is stopping you to bring out the new research. That is a bigger platform. If you're pursuing undergrad, postgrad, then in that case, you are again having a very big platform. And our university, IIC, AIC, is always ready to support you in all the spheres. And you can be like one of the Tatas, Birlas, or anyone you want to be. So never look for the different, never look for those who have already make their benchmarks. Look for something different and go for something different. So with this, I thank Sumit for giving his precious time, and I thank all the members, panel members, and I thank all the attendees for being here. Thank you, Vishaka. Thank you so much, Sangeeta ma'am. It's a rare honor to be here, and the students are very much privileged that at a very young age you have been going through this such a insightful session. Like, this topic is very, if we would have known it in around 2 years back, it would be much a different picture as of now. Yeah, and I have Dr. Deepti Maheshwari with me, who's all-time accountability partner with me. So if Deepti ma'am is having something to share or something to say, Deepti ma'am, can you please add on something? I am thankful to Sumit, especially for this purpose कि you are the young chap, और young बच्चे जब सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, तो शायद बच्चे उन्हें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही रेगुलर
हम लोग बोलते रहे। बहुत अच्छा लगा, मैंने आपका सेशन में कुछ चीजें देखी, बहुत अच्छे से आपने रिसर्च का इनपुट किस तरह से होता है, इनोवेशन क्या है, बहुत सारी चीजें आपने बताई। आई होप सो कि इन लॉन्ग टर्म भी जो बच्चा है यहाँ जुड़ना चाहेगा तो आप जैसे बच्चों के साथ में सारा बच्चा कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाएगा। और ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड का मोमेंट है कि जब हमारे यहाँ का कोई स्टूडेंट इस तरह से यहाँ सामने आया है। आई एम थैंकफुल टू सुमित सर फॉर योर वंडरफुल सेशन, जो आपने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया जिसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, Dipti ma'am. I'm equally honored to have you all here. Okay, so I think if Dr. Kiran wants to say something, madam, or shall we wrap up the session? If I think the people, the deans and HODs are quite busy with a lot of regular works also. So Dipti ma'am, can we wrap up the session? Please ma'am, please. Okay, fine. So thank you, Sumit. And next time we'll have a lot of hearings from you. Thank you, Vishaka, and thank you to all. So Iyer sir, please wrap up the session.